Yes, good evening everyone and welcome to day 28. Okay, so before we started this session, you were all so positive in taking up this journey for the 30 days. Okay, and I'm sure those of you who are still in this journey are happy and not just happy and satisfied with the way you have started changing your life. Okay, so now tell me, how was today's practice? What did you feel when you looked at the person in the mirror and said thank you? How was it? Yes, Atharv, welcome. We will be doing the warm up, but first let me ask a few questions. क्या आपने की वो प्रैक्टिस? जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम की, हाउ डिड यू फील? Felt good, ma'am. Felt good about ourselves. We can't hear you, Aditi ji. Felt good about ourselves, ma'am. Okay. And each time you crossed the mirror, you saw I your... did it around, 7-8 times I crossed in the bathroom while washing my hands or in the mirror. So yeah, I told I am happy. I love the person who is on the mirror. I am proud of it. I am grateful for whatever she has done till now. And one thing which I told every time was that I am blessed that you are the one who was always with me in every up and down of my life. Okay, very good. And you thanked the person also because Yes, देखिए I thank said you thank बहुत you, जरूरी. thank you, thank you 3 times, but every time. या ओके, बिकॉज वो मेन प्रैक्टिस थी कि आपको थैंकफुल होना है. ओके, फॉर वट एवर द पर्सन स्टूड अप फॉर और फेस्ड और डिड और फेल्ड सक्सीडेड, जो भी था, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन. ओके, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं, बट सबसे पहले थैंक यू होना था, जो हमारे आज की प्रैक्टिस थी. ओके, सो वेरी हैप्पी अदिति जी. एंड आपको ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है. सुबह उठ के जितने बार आप मिरर के सामने से निकलो, आपको थैंक यू बोलना है, आई लव यू बोलना है. ओके, so someone else please share, then I'll tell you how I made a structure for this practice. Yes, anyone else wants to share? कैसा लगा आपको ये प्रैक्टिस करके? Were you able to do that? Look at the person in the eye. No? इसका मतलब आपने की नहीं है, हमको ये समझ में आता है. ऐसा है? I did. Okay. I said thank you, and I was able to look at my eyes clearly in the mirror, and also I was confident enough today. Okay. Because nice. actually I want to share this from that secret Lisa Nichols. She has one video. I think she has her own channel also. In that channel, she had shared that thing, that she has a past story, and I have heard that in YouTube that she used to practice that. So from that time, actually, I have done this before also. So for me, it was repeating. Okay, So wonderful. at first time when I did, that time I had felt many things different, but today was nice. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. बस इसको अपना हैबिट में बना लेना. यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट. व्हेन यू आर ब्रशिंग योर टीथ, तो आप कुछ नहीं करोगे. जनरली वी आर अ लिटिल स्लीपी ओनली. आप उसको मिरर में देख के अपने आप को, आपको थैंक यू बोलते ही रहना, बोलते ही रहना अपने आप को थैंक यू. जो भी अफर्मेशंस हैं आपके, आपको वो बोलना है मिरर में देख के. ओके, यस. एंड आई मेड अ स्ट्रक्चर इन द सेंस लाइक वेन एवर आई एम वर्किंग आउट, तो मेरे रूम में एक मिरर है. लाइक सबके रूम में जनरली होता ही है एक मिरर, तो मेरे रूम में भी है. तो पहले हम नहीं देखते थे, हमको लगता था अरे यहाँ पे फैट है, वहाँ पे फैट है, क्या हो गया है, कैसी स्किन हो गई, स्पेक्स पहन के ना, लाइक हाउ इट इज़ व्हेन यू आर वर्किंग आउट. हाँ, तो कैसा होता है इफ़ यू आर वर्किंग आउट एट होम, तो होम क्लोथ में ही कर लेते हैं ना. तो आई वाज थिंकिंग नो, आई हैव टू बी अप्रिशिएटिव. अप्रिशिएटिव तो दूर, आई थॉट लेट मी स्टार्ट विथ थैंक यू ओनली. अप्रिसिएशन बाद में पता चला, तो थैंक यू से ही स्टार्ट करते थे. एंड आई वुड डू वन स्क्वाट, देन आई विल से थैंक यू, वन स्क्वाट देन थैंक यू, ऐसे करते थे मिरर में देख देख के. फिर जब शुरू में नहीं पता था कि ऐसे थैंक यू करना है, तो हम वर्कआउट के टाइम पे सबको, शूज़ को, सॉक्स को, मैट को, डंबल को, स्किपिंग रोप को, सबको थैंक यू करते थे. हाँ, तो ऐसे ऐसे करके हमने हैबिट बनाई. और आज बीच में भूल गए थे ये अपने आप को थैंक यू बोलना. फिर अब आज जब कर रहे थे, तो आज फिर से की, कई बार आई लव यू भी बोला मिरर में देख देख के. तो ऐसे आप अपना एक हैबिट बना लो. व्हेनेवर यू आर गेटिंग रेडी, आपको जो भी अपना एनालिसिस करना है कि हाँ लाइनर ठीक नहीं है, हेयर ठीक है कि नहीं है, लास्ट में जब आप पूरे रेडी हो जाओ,
यू लुक ऑसम, अपने आप को एक ऐसे फ्लाइंग किस करिए मिरर में और बोलिए यू लुक ऑसम, ठीक है, ऐसे करिए। और जितना ज़्यादा हम अपने आप को ऐसे अप्रिशिएट करेंगे, ग्रेटफुल होंगे, लव देंगे, उतना ज़्यादा। डोंट यू थिंक यू वर फीलिंग अ लिटिल हैप्पियर टुडे व्हाइल डूइंग द प्रैक्टिस? जितने बार आप Yes, थैंक यू yes. बोल रहे थे, अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे थे, तो अगर आपने पहले भी की है तो क्या होता है, जैसे जैसे रिविजन होता जाता है ना, तो वो और अच्छा रहता है। तो मे बी कितनी चीज़ें होती हैं हम लोग हमेशा से करते आ रहे होते हैं, बट आप किसी और को देखा आपने कि वो वैसे बोले, हाँ हम भी तो पहले ऐसे ही करते थे, तो अगेन स्टार्ट डूइंग दैट। ओके, सो दिस इज़ अ वंडरफुल प्रैक्टिस। इसको अपने रूटीन का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। जितने बार आप मिरर में देखो, अपने आप को आपको थैंक यू या आई लव यू बोलना ही है। Okay, so anyone else wants to share, or should we start with the warm up? And today's chapter is amazing because आज हमारा last practice है. Yeah, yes Atharv, yes we are ready. Yeah, he's being impatient. Yeah, yes, so please unmute yourselves, switch on the cameras, and let's do the 10 little fingers for our champion. Yeah, 1 2 3 start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. Yes, wonderful. Atharv, I liked it that this time you were touching your toes also. हाँ, कि toes हैं तो हम लोग हाथ क्यों हिला रहे हैं? Very nice. He touches every day, but today he was visible in the camera. Oh, okay, okay. Very sweet. So yes, who wants to read today? Vivek had volunteered. Are you free? Then I will read. Then I will read. No. Hello? Yes, Aditi, Vivek had volunteered to read today. Okay, then let me read now. Yeah, okay. So we'll start with the chapter, and today's chapter is, just 1 second. I'll start. Yeah, just 1 second. Let me. Remember the magic. Day 28. Yes. Remember the Just magic. just 1 second. Yeah. Yes, please start. Day He is 28. excited. Yes. Did. I want to finish the last. Yeah. No, tomorrow is the last, by the way. Okay, today is not the last day. Today might be the Today is last the last practice, but tomorrow is the last day. Yeah. Yes. Okay. Remember the magic, day 28. And when we see this picture, आप देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये क्या लग रहा है सबको? Some moon with magic dust on a river with its shadow on the Hmm. moon lighting on the river. Yes, no, I'll tell you, Aditi, ये shadow नहीं है, एक तो ये reflection है. Shadow is generally dark, yeah. So this is the moon. Sorry, the word I used was wrong. Yes, so this is the moon, and we see. आप देखिए यहाँ पे आपको स्टार्स लग रहे हैं कि मैजिक डस्ट लग रहा है, मेरे को तो मिक्सचर लग रहा है दोनों का. ओके, एंड व्हेन वी सी दिस इज अ रिवर और अ सी और अ वाटर बॉडी एंड देयर इज दिस ह्यूज रिफ्लेक्शन. आप देखिए, अगर हम फोटोग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे हमको एक छोटा सा ही मून दिख रहा है, बट इसका रिफ्लेक्शन कितना सारा, कितना दूर तक है. एक तरीका आप ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं हम लोग इसको, कि हमारी लाइफ में जब अंधेरा था, सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जब हमारे लाइफ में अंधेरा था और कुछ एक रोशनी आई, इज इट द रोशनी ऑफ ग्रैटिट्यूड, इज इट द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड, एंड वो हमारे जीवन को एकदम इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन देके उसने उसमें रोशनी भर दी है, राइट? इज इट दैट, और डू यू फील दैट दिस टाइनी लिटिल हैबिट ऑफ ग्रैटिट्यूड, okay, it is just saying thank you for whatever we already have, and that has created a path of happiness in our life. It is shining, you know, it is the light in the darkness. क्या वो ऐसा है या कैसा है? Let's read, because today's practice is all about remembering the magic. Yeah, please start. That's the thing with magic. You have got to know it's still here, around us, all around us, or it just stays invisible for you. Charles Dayland, B. 1951, writer and Celtic folk musician. Yes, तो that's the thing with magic, कि माने जब तक आपको पता ही नहीं था, हाँ, तो आपको कुछ नहीं पता था कि वो है नहीं है, हाँ, लेकिन जब आपने देखना चालू किया तब वो हर जगह दिखाई दे रहा है. इट्स नॉट दैट कि वो अभी आया है, नहीं, वो हमेशा से ही था, बट हमको अब दिखाई देना शुरू हुआ है. सॉरी, एंड दैट्स द थिंग इन द सेंस कि जब आप उसको देखना बंद कर देंगे,
ठीक है, मतलब आपने ऑब्जर्व करना बंद कर दिया कि आपको लगा अब लाइफ में अंधेरा आ गया है, कुछ अच्छा नहीं है, मीन्स आपने वो उस मैजिक को, उस ग्रैटिट्यूड की ब्लेसिंग्स को देखना बंद कर दिया है। तो डजेंट मीन कि वो है नहीं, वो अभी भी है, लेकिन हमको अब दिखाई नहीं दे रहा। इट इज़ इनविजिबल लाइक मिस्टर इंडिया, वो है लेकिन क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि उसने अपना वो स्विच ऑन कर लिया है और उसके ऊपर रेड लाइट नहीं आ रही है। यस, बट इट इज ही इज देयर। या आप अगर हम इट्स लाइक दैट, अगर आपने आँख बंद कर ली है, इज इट मीन कि बाहर लाइट नहीं है दिन में? नहीं है, आपने आँख बंद कर ली है डजंट मीन कि अंधेरा हो गया। रिमेंबर दैट कोट कि ऑस्ट्रिच को जब डर लगता है तो वो नो अपना आँख बंद करके ऐसे ही नो मड के अंदर चली जाती है। यू नो दैट कि कोई एनिमीज आ रहे होते हैं तो ऑस्ट्रिच यही करती है ना, हाँ, अपना सर सैंड में या बालू में जो भी होता है वहाँ पे अंदर कर लेती है एंड वो सोचती है कि वो इनविजिबल हो गई, बट ऐसा नहीं है। मैजिक लाइक दैट इज ऑलवेज देयर, इट्स जस्ट अस व्हेन वी स्टॉप लुकिंग फॉर द ब्लेसिंग्स, तब हमको लगता है कि वो नहीं है, बट वो एक्चुअल में हमेशा रहती है। यू गॉट टू नो इट्स स्टिल हियर ऑल अराउंड अस। या जब हम उसमें विश्वास करेंगे तभी हमको दिखेगा, जब हम उसको देख रहे हैं हमको तभी दिखेगा। अदरवाइज हमको लगेगा कि लाइफ कितनी ब्रेक डाउन है, इतने चैलेंजेस हैं, इसमें कुछ हैप्पी नहीं है, हमको वैसा दिखता रहेगा। बट हमको पता है ऐसा नहीं है। We are always surrounded with the whiteness, the black dots are very few. Yeah, please read. Every day is unique. There is no day like another day. The good things that happen each day are forever different and forever changing. And so when you remember the magic by counting yesterday's blessing, no matter how many times you do it, it will be different every time. It's just one of the reasons why remember the magic is the most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life. Yeah, just 1 second विवेक। अब आप देखिए रोंडा बर्न कह रही है एवरी डे इज यूनिक। आपको लगता है एवरी डे यूनिक है? ऑनेस्टली एकदम सच्ची बताइएगा। Yes, yes. यस यस, सबको लगता है। हमको तो नहीं लगता था ऑनेस्टली। हाँ, मेरे को नहीं लगता था सब दिन यूनिक। हमको लगता था वही उठो, नाश्ता करो, ऑफिस जाओ, एक्सरसाइज करो, हाँ ब्रश करो, खाओ पियो, ऑफिस चले जाओ, क्लाइंट्स की बात सुनो, ऑफिस में काम करो, मिस्त्री से बात करो, फिर घर आओ, फिर डिनर करो, फिर सो जाओ, कोई सीरीज देखो। क्या लाइफ है, सेम रूटीन एवरी डे। मेरे को तो यही लगता था ऑनेस्टली, टिल द टाइम आई स्टार्टेड आफ्टर दिस चैप्टर ओनली आई रियलाइज कि यस, अगर मेरी रूटीन भी सेम है, हाँ, तो क्या आप सेम ही ड्रेस रोज पहनते हैं? अगर आप रोज सेम टाइम पे उठते भी हैं तो क्या आप रोज सेम मूड में उठते हैं? क्या आपको रोज सेम सपना आता है? क्या आप रोज सेम नाश्ता करते हैं? आप क्या गारंटी कह सकते हो कि रोज आपकी चाय डिट्टो वैसी ही बनती है जैसी आपने कल पी थी? नहीं, कोई नहीं बोल सकता है। तो हर दिन यूनिक है। आप अगर सेम क्लाइंट से रोज उतने ही बजे मिलते हो, रोज उतने बजे उसी इंसान से बात करते हो, नहीं हो सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल। हाँ, आज गर्मी है तो कल सर्दी है, यही डिफरेंस हो जाता है। रोज सन राइज भी सेम टाइम पे नहीं होता है, रोज 1-2 मिनट आगे पीछे होता है। सो एवरी डे इज यूनिक। हमारी आप देखिए ना, कल अगर आप सोचो नहीं सब कुछ सेम है, तो भी आपको पता है कि आपके हेयर रोज थोड़े से लंबे होते हैं। आप नोटिस नहीं करो, डजंट मीन कि इट इज नॉट हैपनिंग, इट इज हैपनिंग। रोज कितनी सेल्स मर रही हैं, कितनी सेल्स बन रही हैं बॉडी के अंदर। सो एवरी डे इज यूनिक, देर इज नो डे लाइक एनी अदर डे, माने हर दिन नया है। तो उसी तरह जो हमारे लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो भी हर दिन न्यू है। तो आज की जो प्रैक्टिस है वो इसीलिए है कि हमको ये हर दिन वो न्यू चीज़ें ढूंढनी है कि क्या यूनिक था, क्या अच्छा था, कैसे हमारी ब्लेसिंग्स हर दिन डिफरेंट हैं। सो द प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट दैट फाइंडिंग दैट यूनिकनेस इन ईच डे। या कि आज आप जो ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, जो आपको लगता है ना कि अरे ब्लेसिंग्स तो रिपीट हो रही हैं, कैसे रिपीट हो सकती हैं? रोज आपको नाश्ता डिफरेंट मिल रहा है। कभी आपकी चाय ठंडी हो जाती है बातों बातों में, कभी आपकी इतनी गर्म हो जाती है कि आपको लगता है ओ बहुत गर्म थी आज तो चाय। ऐसा नहीं हुआ आपके संग? होता ही है। मेरे संग तो मैंने कई बार ये चाय ठंडी गर्म होती है मेरे संग तो ये। या तो हर दिन डिफरेंट है और हर दिन यूनिक है। हर दिन आपका इंटरेक्शन विद पीपल एक डिफरेंट टाइप का है। तो इस और रोंडा बर्न कह रही है जितने दिन जब हम ये यूनिकनेस ढूंढेंगे दिन में, हाँ, व्हेन यू आर राइटिंग योर ब्लेसिंग्स, वैसे ही हमारे लाइफ में मैजिक इंक्रीज होता जाएगा। ओके, इट शुड नॉट बी कि अरे रोज तो लिख रहे हैं थैंक यू फॉर माई पेरेंट्स फॉर गिविंग मी अ हैप्पी फैमिली या हैप्पी चाइल्डहुड। नहीं, आप नहीं लिख सकते ये रोज, क्योंकि आपका जो चाइल्डहुड था वो कितने साल का था, उसमें हर दिन उन्होंने कुछ न्यू किया था। हर दिन आपको कुछ न्यू गिफ्ट मिले होंगे, नया खाना खाया होगा, कुछ न्यू फ्रेंडशिप्स हुई होंगी आपकी। आपको हर
बाहर अपनी जब ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, न्यू फीलिंग्स, न्यू चीज़ें लिखनी है उसके अंदर, ठीक है, तब वो यूनिक रहेगा आपके लाइफ में. सो दैट इज़ वाई दिस प्रैक्टिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस. वाई? इट इज़ गोइंग टू मेंटेन द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड इन योर लाइफ. जब तक आप वो न्यूनेस ढूंढते रहोगे, यूनिक चीज़ें ढूंढते रहोगे, तब तक आपके लाइफ में मैजिक आता रहेगा. एंड शी इज़ टेलिंग अस दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑन गोइंग प्रैक्टिस. माने आप जितने दिन इसको करोगे, रोज रोज करते रहोगे, आपके लाइफ में मैजिक मेंटेन रहेगा. माने अगर इन पास्ट 27 डेज में आपको लगा है कि हाँ लाइफ अच्छी हो रही है, रिलेशनशिप्स अच्छे हो रहे हैं, मनी एरिया में मैजिक हो रहा है, हेल्थ अच्छी चल रही है, हर एरिया में आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है, तो अगर आप चाहते हैं कि वो कंटिन्यू रहे, सो यू हैव टू डू टुडेज प्रैक्टिस एवरी डे ऑफ योर लाइफ. टिल द टाइम यू वांट मैजिक्स, यू हैव टू डू दिस. या प्लीज रीड. No matter what your desires are now or what desires you will have in the future, this magical practice will remain the most powerful practice of your entire life. The For your easiest entire way, life. Yeah. the easiest way to remember the blessings of yesterday is to start by remembering the beginning of the day when you woke up, and go back over the day in your mind. Recollecting the major events of the morning, afternoon, and evening until you reach the time when you went to bed. When you recall yesterday's blessings, it should be effortless. You are just scanning the surface of yesterday, and as you scan, the blessings will bubble to the surface of your mind. या तो एक तो आप ये समझिए कि हमारी जो भी डिज़ायर्स हैं, कुछ भी आपने अपनी ड्रीम में लिखा हुआ है, अगर ये प्रैक्टिस हम लोग रोज़ रोज़ करते रहेंगे, कौन सी प्रैक्टिस जो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि दिन की यूनिक चीज़ें, अच्छी चीज़ें आपको ढूंढ के लिखनी है, तो ये हमारे लाइफ में हर ड्रीम को अट्रैक्ट कर लेगी, अगर हम लोग इसको एकदम अच्छे से शिद्दत से रोज़ कर रहे हैं. एंड शी इज़ टेलिंग अस सबसे ईजी क्या है, आप जब कल सुबह उठोगे, अपनी ब्लेसिंग्स लिखने का टाइम आएगा, तो आपको जो भी ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, कल आपको क्या करना है, आफ्टर यू राइट योर ब्लेसिंग्स, आपको कल ओनली फॉर टुमारो यू हैव टू डू, पहले तो आपने सुबह अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिख ली, उसके बाद आपको सिर्फ कल ये वाली प्रैक्टिस और करनी. यू हैव टू राइट 10 मोर न्यू थिंग्स, वो आगे हमको बताएंगी 10, कि दिन में आपके संग क्या क्या अच्छा हुआ. जैसे उन्होंने कहा ना, क्विकली स्कैन इन योर माइंड, काइंड ऑफ जैसे आप सोते टाइम मैजिक रॉक करते हो, या मैजिक रॉक में भी आप यही करते हैं, आप सोते टाइम स्कैन करते हैं और उसमें से बेस्ट चीज़ के लिए थैंक यू करते हैं. वैसे ही कल सुबह आप ये करेंगे, आज जो भी हुआ था, ठीक है, पूरे दिन में आपने बहुत कुछ किया होगा, किसी से मिले होंगे या नहीं मिले होंगे, खाना खाया, लंच किया, आई मीन ब्रेकफास्ट, डिनर, इंटरेक्शन किया, बच्चों की छुट्टी हो गई है स्कूल की, या जो भी आपने बॉस के संग कुछ बात की, क्लाइंट के संग की, आपने मे बी कोई ब्यूटिशियन के पास गए, या व्हाटएवर, जहाँ भी आप गए, जो भी आपने किया, आपको सरफेस स्कैन करना है. एंड जब स्कैन कर रहे होते हैं तो क्या होता है, स्कैन में जनरली हमको अच्छी चीज़ें दिखती हैं, अगर हम उसमें डीप जाएंगे तब हम उसमें अच्छी गंदी दोनों चीज़ें हमको दिख जाती हैं. हमको जस्ट स्कैन करना है और उन चीज़ों के बारे में लिखना है. ओके, सो प्लीज रीड. You can start this magical practice by asking the questions. What are the good things that happened yesterday? Whenever you ask a question, your mind will immediately look for the answer. Did you receive any great news? Did you magically receive or accomplish one of your desires? Did you magically receive unexpected money? Did you feel especially happy? Did you hear for a friend? What is lure? Lure Did for you a hear? friend? Okay, it's a printing error here. From a friend who you haven't heard from in a long time. Did something go magnificently well for you? Do you receive a great phone call or email? Did you receive a compliment? Or did someone express his or her appreciation for you? Did someone help you to solve a problem? Did you help somebody? Did you finish a project or start something new you're excited about? Did you eat your favorite food or watch a great movie? Did you receive a gift, resolve a situation, have a stimulating meeting, quality time with someone, a great conversation, or make plans for something you really want to do? यस तो कल जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखिए, उन्होंने हमको पूरा एकदम इतने अच्छे से, इतने सारे उन्होंने हमको एग्जाम्पल्स दिए कि हमको अपने दिन में देखना है क्या ऐसी ऐसी कुछ भी चीज़ें हुई थी,
और अभी आप देखिए, आप जो अभी तक अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे थे, क्या इनमें से इस टाइप की कोई भी चीज़ें आप लिखते थे? कि आपके किसी फ्रेंड का फ़ोन आया और आपको अच्छा लगा, क्या आपने उसको अपने ब्लेसिंग में लिखा था? हाँ, या आपने अपना कोई फेवरेट फूड खाया, आपने उसके बारे में लिखा था कि हाँ, आज लंच में मैंने वो खाया था, पनीर बटर मसाला विद नान, ऐसा लिखा कभी आपने कि दैट वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी? तो आपने नहीं लिखा है, तो आप सोचिए ये सब भी ब्लेसिंग होती हैं, और वो आपको लिखनी होंगी कल, ठीक है? अगर खाया है तो लिखिएगा, माने जो आपका मन का अच्छा होगा वो आपने खाया है तो वो लिखिएगा। तो शी इज़ टेलिंग अस वी हैव टू स्कैन द सर्फेस। स्कैन द सर्फेस में क्या होता है कि अगर आपने पनीर बटर मसाला खाया था, आपको अच्छा लगा, बस फिर आप ये मत सोचिएगा नहीं खाया तो था लेकिन उसमें ना मिर्ची थोड़ी ज़्यादा थी। ये हो जाता है यू आर गोइंग एंड डिगिंग योर आप बाल की खाल निकालना जैसे नहीं वो कर रहे हो, नहीं, आपको सिर्फ देखना है कि यस पनीर बटर मसाला खाया, यू एंजॉयड इट, दैट्स इट, आपको वो लिखना है। ऐसे ही पूरे दिन में जो भी अच्छी चीज़ें हुई हैं वो आपको याद करके आपको उनके लिए उनके बारे में लिखना है। या प्लीज रीड। Yeah, sorry, 1 second. There was one line. Yeah. And she's telling us this is very important. Whenever you ask a question, your mind will immediately look for the answer. तो क्या होता है, हम लोग लाइफ में जनरली ये वाला एक ऑडियो है, हाँ, वो हम आपके संग शेयर करेंगे। हमने पहले भी कहा था कि दैट आई विल शेयर दैट ऑडियो। इट इज़ द ऑडियो ऑफ द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉलेस वॉटल्स, जिसकी बुक पढ़ के रॉन्डा बर्न के लाइफ में चेंज आया था, जो उनकी बेटी ने उनको दिया था। इट वॉज शोन इन दैट सीक्रेट मूवी। वो हम आपके संग शेयर करेंगे, आप प्लीज़ उसको सुनिएगा, ठीक है? उसमें है कि हम जो क्वेश्चन पूछते हैं हमको उसी के हिसाब से आंसर मिलता है ना? अगर आपसे किसी ने पूछा तुम आज फिर लेट आओगे, आपको किस टाइप का आंसर आएगा मन में इमीडिएटली? रोज रोज क्या हम लेट आते हैं, ऐसा आएगा आंसर? क्यों, क्या हम एक दिन लेट नहीं आ सकते? और यही सेम चीज़ अगर आपसे पूछी जाए आज तुम कितने बजे आओगे, तो आप क्या बोलोगे? एक डिफरेंट टाइप का आंसर आएगा, है ना? तो जैसा हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑटोमेटिक हमारा आंसर उसी टोन का उसी हिसाब का आता है। मोस्टली टिल द टाइम यू हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, हमारा एक डिफरेंट टाइप, जैसा क्वेश्चन होता था नॉर्मली हमारा रिएक्टिव टाइप का आंसर होता था। तो रॉन्डा बर्न कह रही है हमसे, जब हम क्वेश्चन इस टाइप का पूछेंगे हमको आंसर भी उसी टाइप का मिलेगा। तो शी इज टेलिंग यू टू आस्क व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, what are the good things that happened yesterday? She is not asking what are the things that happened yesterday. तो आपने क्वेश्चन पूछा है, अगर आप बिल्कुल, ये हमने पहले भी बात की है, अगर आपने घर पहुंचे हो, आप अपने वाइफ से, मम्मा से, जिससे भी पूछा खाने में क्या बनाया है ये, या खाने में आज क्या टेस्टी बनाया है, तो कैसी फीलिंग आएगी और क्या आंसर मिलेगा? या आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आंसर दोगे आप? क्या आज फिर से दाल चावल बनाए खाली, ये पूछा है तो कैसा आंसर आएगा? ठीक है? तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब हम खुद से ये क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट हैपेंड येस्टरडे, तो ऑटोमेटिकली माइंड वो गुड थिंग्स ही ढूंढ के बताएगा। ओके, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें गुड होती हैं। आप देखिए ना, उन्होंने पूरा हमको एक पेज बता दिया है, ऑलमोस्ट एक लाइक अ बिग पैराग्राफ, कि क्या क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं जिनको हम कभी नॉर्मली अच्छा समझते ही नहीं थे, उनको ब्लेसिंग समझते ही नहीं थे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप घर में भी किसी से बात कर रहे हो तो ध्यान दो। सी, दिस इज़ ऑल अ प्रैक्टिस। व्हेन आई एम टेलिंग यू, क्या होता है ना, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ कुछ था, मास्टरी, यस। तो रेपिटेशन इज द मदर ऑफ मास्टरी, हाँ, एंड नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, हाँ, एंड रेपिटेशन इज द फादर ऑफ मास्टरी, ऐसी कुछ है दोनों में। आई एम गेटिंग अ लिटिल कंफ्यूज। ये तो पता है ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, वैसे ही Yes. रेपिटेशन इज द फादर ऑफ मास्टरी, यही है। हाँ, तो हम जब आपको बता रहे होते हैं तो आई एम ऑल्सो रिपीटिंग इट इन माई माइंड। हम उसको अपने लाइफ में और इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम भी बोलेंगे मेरे लिए भी उतना वो मेमोराइज होगा, याद होगा। तो जितनी बार आप घर में भी बात कर रहे हो, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो सोच के अब हम लोग को पूछना है, क्योंकि हमको आंसर उस टाइप का मिलेगा। उसी के हिसाब से क्या होता है, इट सेट्स द टोन फॉर द इवनिंग। ऐसे होता है ना कि आप घर में पहुंचे हो, अच्छी सी लाइट जल रही है, रोमांटिक मौसम है, तो इट सेट्स द टोन फॉर द इवनिंग। भले ही उसके बाद खाना कैसा भी बनाओ, है ना, आप कोई पार्टी में जाते हो, बहुत सुंदर से डेकोरेटेड है, सब कुछ है, तो आपका मूड ऑलरेडी अच्छा होता है। खाना सो भी होता है तो भी चलता है, बट क्या होता है, पूरा एटमॉस्फेयर वैसा है तो यू लाइक इट। तो क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर यू आर आस्किंग योर सेल्फ और वेदर यू आर आस्किंग एनी वन अराउंड। हाँ, आप कल सुबह उठे, आज हम क्या पहन के जाना चाहते हैं जिससे सब लोग हमको लाइक करें, जिससे मेरा मूड अच्छा हो। आप ये सोच के अपने वार्डरोब से ड्रेस निकालिए, एक अलग ड्रेस निकलेगी, ठीक है, अलग शर्ट निकलेगी, आपकी फीलिंग डिफरेंट टाइप की होगी। सो वी आर सपोज टू हैव अ गुड डे एंड वी हैव टू मेक एफर्ट्स
मेक एफर्ट्स इन द सेंस लाइक वी हैव टू डू दैट ना, हम वो चीज़ करें जिससे हमारा दिन जाए. सो कीप डूइंग सच थिंग्स विच मेक यू हैप्पी, विच मेक यू लाइटर. ओके, तो ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो. तो दिस इज़ वन थिंग. एंड सेकेंडली आप देखिए, इन्होंने सारी वही चीज़ें पूछी हैं. डिड यू रिसीव अ ग्रेट फोन कॉल और ईमेल, आप देखिए. डिड यू रिसीव अ कॉम्प्लीमेंट, हाँ, और डिड समवन एक्सप्रेस हिज अप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड टू यू. ऐसी चीज़ें ढूंढ के आपको कल ये प्रैक्टिस करनी है. ओके, सो लेट्स रीड. Remember the magic and list yesterday's blessing on a computer or write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday until you feel satisfied that you have recalled the blessings of the day. They can be small things or big things because it's not about the size of the blessings, it's about how many blessings you find and how much gratitude you feel for each one. As you remember and noted each one, simply be grateful and say the magic words for it. Thank you. यस, तो ये कह रही हैं रॉन्डा बर्न कि अच्छा, ये वाली लाइन आप भूल जाइए कि सिंपली बी ग्रेटफुल एंड से द मैजिक फॉर इट थैंक यू. नहीं, हमको से नहीं करना है, हमको लिखना है. ठीक है, क्योंकि जब हम शॉपिंग करने भी जाते हैं तो हम लिस्ट नहीं बनाते, तो हम कई एक आध चीज़ें भूल ही जाते हैं. ठीक है, तो हमको ये प्रैक्टिस रिटन में ही करनी है. क्या करना है, आप जब ये प्रैक्टिस करोगे आपको लिखना है. क्या लिखना है कि छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी अच्छी चीज़ हुई है जिसके आपको लग रहा है कि ब्लेसिंग्स हैं, आपकी फीलिंग उसको याद करके अच्छी आ रही हैं, आपको वो लिखना है. उसको याद करके उसी फॉर्मेट में जैसे आप ब्लेसिंग्स लिखते हो उसी फॉर्मेट में लिखना है. थैंक यू गॉड, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर सो एंड सो यमी फूड दैट आई हैड फॉर ब्रेकफास्ट, द फेवरेट इडली डोसा. जो भी खाया है आपने, जो कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है अपने दिन का, उसके बारे में आपको लिखना है. इज दैट क्लियर? हम लोग याद नहीं रखेंगे क्योंकि माइंड इज़ वेरी स्लिपरी, उसमें कुछ याद नहीं रहता है. आज आपको लग रहा है मैंने तो 100 चीज़ें याद करके थैंक यू की थी. नहीं, हमको रिटन में चाहिए. ओके, रॉन्डा बर्न कह रही हैं आप मन में सोच लो, वो बहुत हम लोग को सोचती है वी आर वेरी नाइस, येस वी आर वेरी गुड, बट आई बिलीव दैट राइटिंग इज द बेस्ट थिंग. आप सबको ये प्रैक्टिस रिटन में करनी है. येस, प्लीज रीड. When you want to do this magical practice after today, you can mix it up so that some days you write out the blessings and other days you remember the blessings and say them out loud or in your mind. You can make a quick list of the blessings, or you can make a more detailed list saying why you're grateful for each one. यस, आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि ये पूरी लाइंस आप भूल जाइए, सिर्फ यही लाइन पढ़नी है. यू कैन मेक अ क्विक लिस्ट ऑफ द ब्लेसिंग्स और यू कैन मेक अ डिटेल्ड लिस्ट सेइंग व्हाई यू आर ग्रेटफुल फॉर ईच वन. हम लोग को सिर्फ ये पढ़ना है. बाकी जिन्होंने नहीं सुना उसको सुनिए भी मत, पढ़िएगा भी मत, सिर्फ ये वाली लाइन पढ़नी है हम लोग को. ठीक है, हम सबको कल से, शी इज टेलिंग अस फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स, कल तो आप ये एक बार प्रैक्टिस करोगे, परसों से क्या होएगा, आप या तो अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखेंगे या ये रिमेंबर द मैजिक प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, बिकॉज जो चीज़ें हो चुकी हैं ब्लेसिंग्स में, यही था ना, जो भी हो चुका है उन सब के बारे में हमको लिखना है. तो इस मोमेंट के पहले जो भी कुछ हुआ है दैट इज़ द पास्ट. आप आज मॉर्निंग भी पास्ट ही था, है ना, आफ्टरनून भी पास्ट था. तो आप कल जब करोगे तो कल आपको 2 बार करना है. क्यों, क्या करना है, आपको सुबह अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है, सेकेंड बार आपको ये रिमेंबर द मैजिक की प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, 10 चीज़ें आपको याद करके लिखनी है. परसों से यू डू ईदर योर मॉर्निंग ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स, या रिमेंबर द मैजिक. यू कैन डू अ मिक्सचर ऑफ बोथ. ओके, बचपन की कोई चीज़ याद आई वो लिख दी, कल कुछ अच्छा हुआ वो लिख दिया, तो टोटल में यू कैन राइट 10. एंड कल के लिए भी ये कह रही हैं यू कैन राइट एज मैनी एज यू वांट. ओके, बट आई विल सजेस्ट मिनिमम 10 आप लिखिए. या प्लीज रीड. There is no set remember. There is no set number of blessings to find from yesterday because every day is different. But I can assure you that every single day of your life is full of blessings. And when you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic of life. And your life will be abundant and magnificent. या तो ये बिल्कुल यही बात है कि आपको हर दिन लगता है अभी तक अगर सेम, तो ऐसा नहीं है. आपको याद ही नहीं हुआ कि आपने कल नाश्ते में क्या खाया. आपको याद है सबको? 2 मिनट तो लगेगा. अच्छा, नाश्ते का बता दिया तो क्या आपको लंच का याद रहेगा? हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू अ न्यूट्रिशनिस्ट? हाँ, आई हैव नॉट बीन, बट मैंने रुजुता दिवाकर की बुक पढ़ी है. मेरे को ये पता है, वो लोग बोलते हैं सब कुछ लिख के बताओ. आपसे अभी भी पूछा था आपने कल दिन भर में कितनी आइटम्स खाए हैं,
आप बोलोगे हाँ ये खाया ये खाया, कुछ तो खाया ही नहीं हमने, पता नहीं क्यों वेट नहीं ठीक हो रहा है, आइडियल वेट नहीं मिल रहा है, एवरीवन इज लाइक दिस, बट दे ऑलवेज आस्क अस टू राइट इट आउट। क्यों? बोले आप 3 दिन 4 दिन खा के जो आए हो ना उसकी लिस्ट बना के लेके आओ। क्यों बोलते हैं वो लोग? वो क्यों आपको विश्वास नहीं करते हैं? हाँ क्यों नहीं करते? टेल मी, हम क्यों झूठ बोलेंगे हमने क्या खाया? बिकॉज दे नो वी विल नॉट रिमेंबर। ठीक है, तो अगर आप जब लिखने बैठोगे तो आप खुद ही देखोगे कि हाँ हमने ये भी खाया था, हमने वो भी। जस्ट खाने के बाद में आप सोचिए इतनी सारी, हर दिन आप डिफरेंट चीज़ें खाते हो, है ना? कभी आपने शायद 1 रोटी खाई होगी, कभी कभी 1.5 खाई होगी, कभी आपने रोटी चावल मिक्स खाए होंगे। तो वैसे ही हमारे लाइफ में जो भी हो रहा होता है, एवरी डे समथिंग न्यू समथिंग डिफरेंट इज हैपनिंग इन एवरी एरिया। या मे बी आप टॉयलेट भी एक बार में शायद 4 बार 5 बार गए, दूसरे दिन 5 6 बार चले गए, वी डोंट नो, हमको पता ही नहीं है। आपसे पूछा जाए आप दिन में कितने बार टॉयलेट, नो वन विल रिमेंबर, है ना? आपको याद ही नहीं है। आज भी अगर हम आपसे पूछे आप रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने आज कितने बार दिन में थैंक यू बोला, यू विल नॉट नो। हाँ, क्या आपने रोज आज मैजिक फुटस्टेप्स की थी आपने और उतने ही 90 सेकंड्स की थी? नहीं, उससे ज़्यादा करी होंगी, उससे कम भी हो सकती है, मे बी 2 3 बार 90 सेकंड्स किए होंगे, वी डोंट नो। एंड शी इज टेलिंग अस कि जब हम ये समझ जाएं कि हर दिन यूनिक है, हम हर दिन उठ रहे हैं, ये यूनिक है, हाँ, देन हमारे लाइफ में एक्चुअल मैजिक हमको दिखने लगेगा। ठीक है, देन यू विल हैव ओपन योर हार्ट, माने जब हमारे दिल से हम सारी ये चीज़ें देखने लगेंगे। और हमने ये बात की है कि द हार्ट इज़ 5000 टाइम्स स्ट्रोंगर then the magnetic field of the heart is 5000 times stronger than that of the mind, okay, of the brain। और ये इट इज़ नॉट अ कुकड अप थिंग, ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया एंड ये पावर बुक में लिखा हुआ है। एंड WHO, नॉट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बट द वर्ल्ड हार्ट ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे उनका रिसर्च किया हुआ है। ठीक है, एंड इट इज़ देयर इन प्रिंट इन द बुक, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो जब हम हमारे दिल से ग्रैटिट्यूड फील करना, ये मैजिक देखना शुरू कर देंगे, तब हमारे लाइफ में अबंडेंस हो जाएगा और वो लाइफ और मैग्निफिसेंट हो जाएगी। जो आपने अपने ड्रीम्स के बारे में लिखा है खुद ब खुद आपकी आंखों के सामने आती चली जाएंगी। ओके, तो ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको हर दिन करना है। आई हैव बीन राइटिंग माई ब्लेसिंग्स, अब देखिए एकदम नहीं बोलना चाहिए, बीच में हो सकता है 3 4 दिन इधर हुए होंगे, बट सिंस अगस्त लास्ट ईयर आई हैव बीन राइटिंग माई ब्लेसिंग्स एवरी डे। अगर कभी सुबह भूल जाते हैं, शायद 1 2 दिन हुआ होगा जब हमने शाम को लिखा है, फिर भी हम बोल रहे हैं कि हो सकता है हम 1 2 दिन लिखना ही भूल गए हों। हमको ऐसा ध्यान नहीं आ रहा है, बट फिर भी हो सकता है, आई एम जस्ट याद नहीं मेरे को। बट इफ आई एम सेइंग तो हमने लिखा ही, आई एम स्टिल सेइंग कि 5 दिन नहीं लिखा होगा, हर दिन लिखा है। और आप जब लिख रहे होगे आपको खुद ही लगेगा कि यस आप लिखते जा रहे हो, इसलिए दिन अच्छे आते जा रहे हैं, अच्छे आते जा रहे हैं। मे बी ये बिलीफ बन गया है, बट आई एम वेरी हैप्पी विद दिस बिलीफ, बिकॉज मेरे को पता है कि अगर हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो मेरी लाइफ अच्छी होएगी और हो रही है। ठीक है, सो दिस इज़ वाई दिस प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगता है ना कि रोज रोज ब्लेसिंग्स कहाँ से ढूंढें, उसके लिए ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, क्योंकि कल आपको अच्छी चीज़ें हुई हैं, आपको दिखी हैं, है ना? बच्चे टाइम से स्कूल चले गए, बच्चे घर आ गए, आप ऑफिस पहुंच गए, ऑफिस से घर आ गए, ये भी तो एक ब्लेसिंग है, नहीं क्या? है ना? कितने सारे क्या क्या इंसिडेंट्स होते रहते हैं। वी आर सो ब्लेस्ड, हम लोग रोज जाते हैं और रोज वापस आ जाते हैं, हैप्पीली आ जाते हैं, बैग सब वापस आ जाता है हमारा संग में। मेरे को याद है जब हम न्यू ना हमने जॉब जाना स्टार्ट किया था, आई वॉज इन कॉलेज ओनली देन आई स्टार्टेड माई इंटीरियर डिजाइनिंग का इंटर्नशिप। ठीक है, तो कितने बार ऐसा हुआ कि पॉकेट में वॉलेट रखते थे और घर आ रहे हैं, देखते घर पहुंचते तो वॉलेट ही नहीं है। ठीक है, पता नहीं कैसे जाता था, गिर गया, पिक पॉकेट हो गई, पता नहीं। एंड आई वाज थिंकिंग कितना हमने अब हम सोचते हैं पता नहीं हम कितने अनग्रेटफुल होते होंगे उस समय मनी के लिए, यही तो होगा ना, वरना कैसे चला जाएगा। या तो आप सोचो ऐसे ऐसे चीज़ होते हैं, हम लोग रियलाइज़ ही नहीं करते हैं। एंड अब हमको लगता है आई एम सो ब्लेस्ड कि जाते हैं और वापस आ जाते हैं, एवरीथिंग इज इंटैक्ट, माई फोन इज़ हैप्पी, आई एम हैप्पी, माई थिंग्स कम बैक विद मी व्हेन आई गो। और एक बार तो ऐसा हुआ, फिर बाद में आई वॉज ट्रैवलिंग विद माई सिस्टर एंड आई हैड गॉन टू सम यूरोपियन कंट्री, बहुत पहले की बात है, मे बी आई थिंक 10 12 ईयर्स। आप सोचो हम रेस्टोरेंट गए, फ़ोन न्यू फ़ोन लिया था उस समय हमने, हाँ एक न्यू कोई कंपनी का फ़ोन लिया था, रेस्टोरेंट में खाए, फ़ोटो खींचने के लिए ले गए थे, वहाँ पे तो कोई सिम विम तो वहाँ पे इंटरनेशनल रोमिंग ली नहीं थी। अब क्या हुआ, डिनर के बाद हम लोग लाइक जैसा होता है सारा दिन वॉकिंग कर रहे हैं, अपना कुछ मंच कर रहे हैं, एक टाइम मील खाते थे हम लोग तो अब खाए पिज़्ज़ा वगैरह कुछ खाया एंड जब वापस आए होटल देखिए मेरा फ़ोन ही नहीं है। ये भगवान अब कहाँ से मिलेगा फ़ोन, न्यू फ़ोन। एंड माई सिस्टर जब उसके अंदर सिम था नहीं तब उसको लेके क्यों गए? ठीक है, एंड आई वाज थिंकिंग पता नहीं क्यों लेके गए, होटल में क्यों नहीं छोड़ दिया उसको। एंड आई वाज जस्ट प्रेइंग, आई डोंट नो व्हाट आई वाज प्रेइंग, हाँ। एंड आई सेंट माई ब्रदर इन लॉ कि जाओ प्लीज़ देख के आओ, हाँ हो सकता है वहाँ पे पड़ा, उस समय वो बंद हो रहा था होटल भी, रेस्टोरेंट भी, वर द लास्ट पीपल। एंड आप विश्वास करोगे मेरा फ़ोन मिल गया
एंड आई वाज थिंकिंग ये तो ये भी एक ब्लेसिंग थी, इसके बारे में मैंने लिखा ही नहीं है, ये भी लिखना है। तो आप सोचो कितनी सारी चीज़ें हो जाती, खो के भी मिल जाती हैं, कितनी बार सिंपल चीज़ें घर से खो जाती हैं। तो हर दिन में हम लोग को ऐसी यूनिक चीज़ें मिलती हैं और उनको हम लोग एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, है ना। तो हर चीज़ ढूंढ ढूंढ के सोच सोच के बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करना। एंड नाउ व्हेन आई एम शेयरिंग दिस इंसिडेंट आई एम थिंकिंग हमने उसके लिए कभी ग्रैटिट्यूड नहीं किया। नाउ हैव टू डू फॉर माई ब्रदर इन लॉ, दैट रेस्टोरेंट, दैट सिटी, सबके बारे में मेरे को लिखना होगा अब। हाँ, एंड वो फ़ोन उन्होंने लॉक कर दिया था, सब कुछ कर दिया था, और वो मैंने ऑफ, जैसे नहीं मेरा लॉक था और उन्होंने, आई डोंट नो कि लॉक करेंगे तो भी कैसे खोया, वो सो नाइव एट दैट टाइम, और वो ऑफ कर दिया था। फिर भी माई ब्रदर इन लॉ वेंट, उन्होंने बोला नहीं और तो कोई आया नहीं था, यही होगा, और किसी ना किसी अटेंडेंट से मिल गया एंड आई गॉट माई फोन। आई वाज सो हैप्पी, मैं कि चलो न्यू फोन तो वापस मिल गया, वरना यू नो एक ऐसा होता है ना, यू हैव अर्नड एंड सेव्ड एंड बॉट द फोन। तो जो आप जिस जिस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड याद कर करके यू नो डू दैट, कुछ हुआ होगा छोटे में अच्छी चीज़, उसके बारे में जितनी चीज़ों के बारे में ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। ओके, सो प्लीज रीड। Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. यस, Remember the magic, it was created for you. या तो अब ये जो है रिमेंबर द मैजिक, आप देखिए ये जो रिमेंबर द मैजिक है, ये मेरे को हम हर बार बोलते हैं, आई फील दिस इज फॉर द बुक, द मैजिक बुक। आपको पता है ना हमारी बुक का नाम द मैजिक है। यस, सो दिस बुक वॉज क्रिएटेड फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ अस, कि जब आपको लगे यू नो कि कुछ लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, क्या करें, जस्ट पिक अप एनी प्रैक्टिस ऑफ दिस बुक एंड स्टार्ट डूइंग इट, बिकॉज ग्रैटिट्यूड इतना ईजी, इतना सिंपल वे में इस बुक में हमको बताया गया। एंड ग्रैटिट्यूड मतलब जो हमारे स्क्रिप्चर्स हमको समझाने की कोशिश कर रहे थे, हमारे पेरेंट्स हमको समझाने की कोशिश कर रहे थे, थैंक्स टू रॉन्डा बर्न, डोंट यू फील इतने सिंपल तरीके से उन्होंने हमारे लाइफ में ग्रैटिट्यूड वापस ले आया है। वापस इसलिए क्योंकि हमारे रूट्स में था ये, हमारे कल्चर में है ये, बट हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते थे। एंड बिकॉज ऑफ दिस बुक वी हैव स्टार्टेड फॉलोइंग इट इन सो मैनी वेज एवरी डे इन आवर लाइफ। डोंट यू अग्री? या सो दिस बुक इज़ दैट ग्रेट कि आपने कोई भी प्रैक्टिस उठाई उसको उस दिन आप कर लीजिए एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पियर, नाइसर। एंड रॉन्डा बर्न ने शुरू में कहा था कि उनका इंटेंशन ही ये है कि वो दुनिया में खुशियाँ लाएं, हम सब के लाइफ में जॉय लेके आएँ। या सो ग्रैटिट्यूड इज़ द वे फॉर इट, बिकॉज जिस चीज़ के लिए हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं वो हमारे लाइफ में बढ़ता चला जाएगा, और जिस एरिया में नहीं कर रहे हैं वी नो वॉट इज़ गोइंग टू हैपन। यस, प्लीज़ रीड। Magic practice number 28. Remember the magic. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. You have written 280 blessings over the course of this book. Yes, Remember so the magic by yeah. counting the blessings. यस, जस्ट 1 सेकेंड विवेक, डोंट यू फील दिस अमेजिंग? आपको रियलाइज हुआ कि आपने 280 ब्लेसिंग्स लिख ली हैं अभी तक? हम तो गिनेंगे ही नहीं, हमने इतने सारे लिखे। आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि मैंने इतने सारे लिखे हुए हैं, ओवर 10 तो सेशंस हो गए हैं और 1 साल से कर रहे हैं। आई एम थिंकिंग वाओ, इतने सारे ब्लेसिंग्स लिख लिए हैं एंड कितनी सारी कंप्लेंट्स नेगेट हो गई हैं, डिवाइड बाय 10 है ना, कितनी सारी कंप्लेंट्स नेगेट हो गई हैं। हाँ, बट क्या है, हर दिन करते हैं अपन कंप्लेंट, हर दिन अननोइंगली ही करते हैं। हाँ, कि तुम लेट आए, आज हम लेट हो गए। अगर हमने खुद के लिए भी बोल दिया ना कि आज हम कितना लेट हो गए हैं, आपको लग रहा है कि वो कंप्लेंट नहीं है? ये भी कंप्लेंट है। किसके अगेंस्ट? हमारे लिए कंप्लेंट है। या आई एम फीलिंग वेरी लेजी टुडे, डू यू मीन इट एज अ कॉम्प्लीमेंट? देन इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट। बट इफ़ यू फील दैट आज हम लेजी फील कर रहे हैं, इट इज़ अ कंप्लेंट। इफ़ यू फील कि नहीं, ये ग्रैटिट्यूड है कि नहीं है, बोलिए। अच्छा, वन मोर थिंग, पावर बुक में हमको बताया गया है एंड आई हैव शेयर्ड इट विद दिस ऑल्सो इन दिस सेशन ऑल्सो। सीक्रेट बुक में भी ये बोला गया है कि ज़ीरो बोल के कुछ नहीं होता है, न्यूट्रल बोल के कुछ नहीं होता है। अपन जो बोलते हैं ना ओके है, हाउ आर यू ओके, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड ओके। या तो नेगेटिव है या तो पॉजिटिव है, ठीक है। न्यूट्रल वायर जो होता है ना, उसका कोई काम ही नहीं होता, वो कुछ नहीं करता है। आई डोंट नो, कुछ करता होगा इलेक्ट्रिकली, मेरे को नहीं पता इलेक्ट्रॉनिकली कुछ करता है कि नहीं, बट सिर्फ पॉजिटिव होता है लाइफ में और सिर्फ नेगेटिव होता है। तो जब भी आपसे कोई पूछे हाउ आर यू, हाउ इज़ लाइफ, हमेशा बोलिए पॉजिटिव में ही आंसर करना है। ग्रेट, ऑसम, अबाउट द लाइन की ही फीलिंग्स में बोलना है। कुछ नहीं समझ में आए तो यही बोलना है, गॉड्स ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग इज़ ग्रेट। हर चीज़ में आपको यही बोलना है, क्योंकि जो आप बोलोगे आपके लाइफ में वही आ रहा है, ठीक है। तो आज से तो ये एकदम याद रख लीजिए कि कभी नहीं बोलना है एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, एवरीथिंग इज़ सेम सेम, ये एकदम नहीं बोलना है। ओके, प्लीज़ रीड।
Remember the magic by counting the blessings of yesterday and writing them down. Ask yourself the question, what are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday until you feel satisfied that you have remembered and written down all the blessings of the day. Yes, तो अब आप देखिए, शी इज As you टेलिंग अस, remember, हाँ, शी इज टेलिंग अस दिस एंड रिटन डाउन दैट यू हैव रिमेंबर्ड एंड रिटन डाउन ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ द डे। ठीक है, वो यहाँ पे हमको फर्स्ट यही बोल रही हैं दैट यू हैव टू राइट डाउन। उसके बाद वो हमसे कहती हैं, नेक्स्ट वाली लाइन कहाँ गई, सॉरी, हाँ, यस, as you remember each one, simply say the magic words thank you for it in your mind. यस, तो आपको ये, After, आपने बोल भी लिया नहीं, बट आपको ये प्रैक्टिस लिख के ही करनी है। ठीक है, आपको मन में नहीं करनी है, सोच के नहीं करनी है, जोर से बोल के नहीं करनी है, नहीं, आपको ये प्रैक्टिस लिख के ही करनी है। after today, you can do this practice as a written list or out loud or in your mind. You can make a quick list of things you are grateful for about yesterday, or make a shorter or more detailed list and say why you're grateful for them. यस, तो ये भी है कि कल के बाद आप, शी इज गिविंग एन ऑप्शन, बट आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि आपको लिख के ही करनी है। आपको मन में नहीं सोचना है, क्विक लिस्ट नहीं बनानी है, टू डू लिस्ट टाइप की, ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको लिख के विद रीजंस ही देना है। या Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. yes, so everyone is clear about this practice कि क्या करना है। एंड अच्छा, so now this is not the end of the reading, हम लोग ये वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे अभी, because otherwise tomorrow will be probably a 2-hour session. Yeah, so we will read this chapter and then we will discuss what I want all of us to do tomorrow. Yeah, so Vivek, you want to continue or someone else wants to read? Ma'am, I want to read. Okay. Okay, जागृति, yes, पल्लवी जी ने भी ऐसे हैंड रेज किया था, बट आई थिंक जागृति यू कैन रीड। Tomorrow. I'm there. Yeah, yes, जागृति, please start. Yes, ma'am. Please start. Ma'am, can you please turn the page? You have to read this. Jagriti, your network is fine क्या? Just please check. Yes, ma'am. Your magical. We can't hear you. Ma'am, from point 3 onwards, I have to read. Point 3 कहाँ से आया? Your magical future, and then we'll see this picture. Okay. Yes, ma'am. This picture is there. ओहो, की क्यों नहीं दिख रही है? This is not the picture. Just 1 second. What is happening? Yeah, this is the picture, your magical future, and this is the picture that is there with this. Okay, सब आप इसमें देखिए, ये यहाँ पे क्या है? Everyone knows? Telescope. Yeah, this is a telescope. And generally telescope से अपन क्या देखते हैं? Stars. Space. Stars. Okay. Generally दूर की चीज पास में देखते हैं, बेसिकली यही है ना? अब आप देखिए, इससे ये है, अब देखिए इसमें यहाँ पे मैजिकल डस्ट दिख रही है और वहाँ पे भी मैजिकल डस्ट दिख रही है। इज इट दैट कि आप जब यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से मैजिकल डस्ट वहाँ जा रही है, कि वहाँ से मैजिकल डस्ट यहाँ आ रही है? इज इट दैट यू आर लुकिंग एट योर फ्यूचर, okay, and making it appear in front of you with the magic dust that you are sprinkling here? कि यहाँ का मैजिक आपको वहाँ दे रहा है, यहाँ से आप मैजिक वहाँ ट्रांसफर करके उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। ये क्यों हमको ये दिखाया जा रहा है? वाई इज शी टेलिंग अस दैट योर मैजिकल फ्यूचर? हाँ, ऐसा क्या है? वो मैजिकल फ्यूचर कैसे बन रहा है? क्योंकि आप अभी उसमें ग्रैटिट्यूड का मैजिक डाल रहे हो, और आप उससे, इट कैन ऑल्सो बी दैट आप विजुअलाइज कर रहे हो। दूर का मतलब दूरदर्शी, यानी आप फ्यूचर देख रहे हो, दैट इज इट ना। आपको दूर का दिख रहा है, आप दूरदर्शी हो रहे हैं। या अब आप सोचिए, अगर आपसे कोई बोले टेलीस्कोपिक विजन, इसका मतलब ये नहीं कि दूर तक आपको प्लैनेट दिख रहे हैं, मून दिख रहा है, जुपिटर दिख रहा है, नहीं। इट इज दैट यू आर लुकिंग एट योर फ्यूचर, एंड व्हेन यू आर लुकिंग एट योर फ्यूचर, वुड यू वांट टू सी थिंग्स इन अ नाइस, गुड, हैप्पी थिंग?
या आप चाहते हो कि नहीं हाँ दुख भरा, आप वही सोचोगे? नहीं ना, आप तो यही सोचोगे ना सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ हैप्पी हो रहा है। वाई? बिकॉज हमको पता है जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारे लाइफ में आएगा। तो जब आप आज के टाइम पे अपना ग्रैटिट्यूड का मैजिक स्प्रिंकल कर रहे हैं और उस नज़र से आप अपनी ड्रीम्स और विजन विजुलाइज कर रहे हैं, तब वो आपके लाइफ में सच होने वाला है। ओके, सो यस जागृति, वील कंटिन्यू। Yes, ma'am. जस्ट 1 सेकेंड। या प्लीज रीड। You are the builder of your life, and gratitude is your magical tool to build the most incredible life. You have now laid a foundation through these magical practices, and with the tool of gratitude, you are adding more floors to the building of your life. Your life will climb higher and higher until you reach the stars. Until you There touch is- the stars. Yeah. Sorry, until you touch the stars. Hmm. There is no end to the heights you can reach with gratitude, and there is no end to the magic you can experience. Like the stars in the universe, it's infinite. या सो 1 सेकेंड। अब ब्रॉन्डा बन हमसे कह रही हैं दैट वी आर द बिल्डर ऑफ आर लाइफ। या एंड कैसे हैं हम? आपको पता चल गया ना कैसे हैं आप जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जैसी फीलिंग्स में रह रहे हैं, वैसी ही हमारी लाइफ बन रही है ना? लाइक व्हाट वी आर थिंकिंग, आर वर्ड इज क्रिएटिंग आवर वर्ल्ड। या बिल्कुल यही है ना, आर थॉट्स क्रिएट थिंग्स। जो भी आप जितने भी आप ये विजनरीज को बोलिए, वो सब एक ही बात बोलते रहते हैं। अगर कोई ये भी बोलता है ना एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, इसका मतलब अपन क्या सोचते हैं कि भगवान जी ने बना के भेजा है, अपन यही सोचते हैं ना। बट क्या अब आपको ऐसा नहीं लगता जो हम बोल रहे होते हैं इन दैट वे इट इज़ प्री डेस्टिन्ड? जो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, उसी हिसाब से चीज़ें आ रही हैं। तो वी आर सेटिंग द थिंग्स इन मोशन, कि हमको क्या चाहिए वही हमारे लाइफ में आ रहा है। बट अब हमको पता चल गया है कि ग्रैटिट्यूड इतना इम्पॉर्टेंट है ना, कि जैसा हम चाहते हैं अगर हम ग्रैटिट्यूड में रहेंगे तब हम जैसा चाहेंगे वैसा वैसा बनता जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे होते हो तो आप पॉजिटिव फीलिंग्स में ही रहते हैं। आप रोते रोते खुशियाँ नहीं, आप रोते रोते ब्लेसिंग्स ढूंढ ही नहीं सकते। ढूंढ सकते हैं? आप रो रहे हो, बोल रहे हो कितनी टेस्टी पाव भाजी खा रहे हैं, नहीं कर सकते। रोते माने खाते खाते तो लोग फिर खुश हो जाते हैं, है ना? और ये तो हमको पता ही है कि रोते रोते ना खाना है ना पीना है। एवरीवन नोज दिस ना, एवरीवन रिमेंबर्स कि क्या कोई रो रहा होता है पर बोलते हैं अरे चलो थोड़ा पानी पी लो। नहीं, एकदम भी नहीं पिलाना है उसको। या बिकॉज हमको पता है जिस फीलिंग से अपन पानी या खाना खाएंगे वो सारे सेल्स को वैसे ही इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो अगर आपको रोतलू बनना है तो रोते रोते पानी पीजिएगा, ठीक है? अगर आपको और गुस्सा वाला बनना है तो गुस्से में पानी पीजिएगा। तो पहले तो ये चेंज करना है। सबसे पहले हर चीज़ में आपको ग्रैटिट्यूड करना है, दैट यू हैव टू बी ग्रेटफुल ऑलवेज। ओके, ये आप अपना एक तो मंत्र बना लीजिए कि बी ग्रेटफुल ऑलवेज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हर टाइम आपके मन में चलते रहना चाहिए, ठीक है? तो अब ब्रॉन्डा बन कह रही है कि हमने हमारी ड्रीम्स के लिए एक फाउंडेशन बना लिया है थ्रू ऑल द प्रैक्टिसेस इन द पास्ट 27 डेज। या रोज अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, तो आपने एक अपना फाउंडेशन बना लिया। हम सब ने किस चीज़ का फाउंडेशन? कि हमको हमारी लाइफ में आगे क्या चाहिए, ठीक है? शी इज़ टेलिंग अस द फाउंडेशन एज इन द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग। और जितना ग्रैटिट्यूड करते जाएंगे हम उतना ज़्यादा अपनी बिल्डिंग को टॉल लेके जा सकते हैं। वी कैन कीप ऑन एडिंग मोर फ्लोर्स। और आपको ये पता ही है ना कि कोई भी बिल्डिंग जितनी भी टॉल हो, विवेक विल बी एबल टू टेल अस बेटर, उसका फाउंडेशन उतना ही डीप होता है। इज दैट सो विवेक? ही इज एन आर्किटेक्ट ना, राइट? तो yes. तो जितना ज़्यादा हम ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ज़्यादा हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होता जाएगा। एंड शी इज़ टेलिंग अस हमारी लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी, हम लोग ऊंचे 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 जाते चले जाएंगे। मतलब जो हम चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, जिस एरिया में चाहते हैं वो हमको मिलने लगेगा। इट इज़ लाइक टचिंग द स्टार्स, कि हमारी बिल्डिंग इतनी ऊंची, इतनी स्ट्रांग फाउंडेशन की है दैट वी कैन टच द स्टार्स। अगर वो स्टार आपको वो स्काई यूनिवर्स वाले चाहिए, वो स्टार्स हो सकते हैं। आपको बॉलीवुड में किसी से मिलना है, हॉलीवुड से किसी से मिलना है, वो भी हो सकता है। यस, जो आप चाहते हैं वो मिल सकता है। देयर इज़ नो एंड टू द हाइट्स यू कैन रीच विद ग्रैटिट्यूड। बस आपको अपनी सोच को उतना बड़ा करना है, आपको अपनी ड्रीम को उतना बड़ा करना है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। देयर इज़ नो एंड टू द मैजिक यू कैन एक्सपीरियंस, माने देयर इज़ नो लिमिट। अगर आपकी ड्रीम है कि आपको यूएस शिफ्ट होना है, कितने जन हो जाते हैं? या आपकी ड्रीम है कि यहीं पे आपको मिलियनेयर बनना है, वो हो सकता है। एनीथिंग दैट यू विश फॉर यू कैन अचीव जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, जस्ट बाय मेकिंग दैट फाउंडेशन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, ठीक है? या प्लीज रीड। To speak that
Jagriti, can everyone hear? Jagriti, we can't hear you, dear. Hello, ma'am. Can you hear me? Yeah, this is magical. ये भी आता है. Yes, See, ma'am. हम नहीं बोल रहे हैं, ये हर बार ऐसा होता है ना, but tell me. सबके संग ये होता है ना? Yes, ma'am. Yes, Every please. time. Yeah, please read. To speak gratitude is courteous and pleasant. To enact gratitude is generous and noble. But to live gratitude is to touch heaven. Yes. The ideal way No, to no, no. move We have forward to be grateful and appreciate the author also. We have to acknowledge whoever has written this quote. Yeah. Johann A. Hartner, Professor, Theological Poet. या तो ही इज टेलिंग अस टू स्पीक ग्रैटिट्यूड इज कर्टियस एंड प्लेजेंट. हम लोग छोटे से बच्चों को सिखाते हैं कि शुक्रिया बोलो, थैंक यू बोलो, धन्यवाद करो, है ना, बिल्कुल बोलते हैं, प्लीज बोलो, सॉरी बोलो, उसको सब सिखाते हैं. ठीक है, शी इज टेलिंग अस ये कर्टियस है, ये अच्छे मैनर्स के अंदर आता है. सेकेंड, टू इनैक्ट ग्रैटिट्यूड इज जेनरस एंड नोबल. माने आप अगर किसी के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, आप किसी को कुछ पैसे दे रहे हैं, किसी को कुछ तन मन धन से किसी की सेवा कर रहे हैं, वो जेनरस एंड नोबल हो जाता है. या बट टू लिव ग्रैटिट्यूड मतलब लिव ग्रैटिट्यूड मतलब कि आप सांस के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं. एंड लिविंग मतलब आप दिल से कर रहे हैं. तो जब हम ये करने लगेंगे, इट इज़ लाइक टचिंग हेवन. माने हम एकदम प्योर सोल, एकदम शुद्ध, अच्छे विचार के बहुत अच्छे बन जाएंगे. तभी हम हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड, माने हमारे लाइफ में ही ग्रैटिट्यूड है, वैसा हो जाएगा. एक आपको प्रैक्टिस अपने हैबिट में डालनी है. हम लोगों ने वो 10 रुपये देने वाली बात की थी. हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रैक्टिसिंग दैट? कि आपको वो 3 नोट किसी को देने हैं. अगर 3 नहीं मिल पाए, जब मौका मिले, ब्लेसिंग्स के संग आपको ये मनी का साइकिल चलाना है. ठीक है, ये चलाना ही चलाना है. इफ़ यू वांट मनी कमिंग योर वे, यू हैव टू गिव. बहुत अच्छी लाइन आश्विन मैम ने समझाई थी, जो देवे वो देव. माने जो देता है उसमें देवगुण होते हैं. राइट, तो जब आप तभी दोगे मन से जब आपको लगता है कि हाँ उसकी हेल्प करनी चाहिए. ठीक है, तो उसके पहले तो अब हम लोग जैसे हम लोग सीख रहे हैं कि हम ना कोई हैबिट हम इनकलकेट कर रहे हैं कि हम इतना देंगे, तो खुद आपके मन में बाद में फीलिंग्स जनरेट होने लगेंगी. अगर आपको लगता है कि नहीं हम रुपीज़ अभी नहीं देना चाहते, नेक्स्ट लेवल पे देंगे, तो आप क्या करिए, आपके पर्स में आजकल 50 पैसे 1 रुपये की टॉफ़ी आती है. राइट, अभी क्रिसमस है, इतने सारे बच्चे आपको रोड पे दिखते होंगे. हाँ, या मे बी आपको 5 रुपये का बिस्किट का पैकेट है, या जो भी आप इस टाइप से कुछ भी आप अपने पास रखिए, अपने बैग में 1-2 चीज़ रखिए, या गाड़ी में रखिए, या स्कूटर में रखिए, जिसमें भी जो आपको कुछ भी, लाइक इफ़ यू सी पीपल, गिव इट टू देम. आप ये कर सकते हो, है ना. तो मैंने इस शेयर भी किया है. समवन इट सेड, नहीं मैं तो बिस्किट नहीं खाता, मुझे पैसे दीजिए. तो आपको उसको देना ही नहीं है या उसको इग्नोर कर देना है. ठीक है, ये नहीं बोला देखो मैंने तो उसको दिया था, इसको तो कोई कदर ही नहीं है, एक तो हम दे रहे हैं, उसको कोई उसकी वैल्यू नहीं है. आपको उसके कर्म का नहीं सोचना है, हमको सिर्फ हमारे कर्म का सोचना है कि हम जो दे रहे हैं वो हमको कैसे मिलेगा या नहीं मिलेगा. जैसे बोलते हैं ना, कर्म करो और फल की चिंता मत करो. वी जस्ट हैव टू डू आवर ड्यूटी. ठीक है, वी जस्ट हैव टू डू दिस गुड डीड. आपको देना ही है. लाइक इफ़ यू वांट गुड साइकिल्स हैपनिंग इन योर लाइफ, यू वांट गुड ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे, आपको देना ही है. जब आप स्टार्टिंग में इस फीलिंग से दोगे, बाद में आपके दिल में फीलिंग्स आएंगी ही आएंगी. ओके, एंड अगर आपके पास टॉफ़ी भी नहीं है, आपको पैसे भी देने का मन नहीं, या मे बी यू आर विद पीपल कि आपने किसी को दिया एंड दे विल से, क्यों दिया तुमने, रोज यहीं खड़ा रहता है, देखो हट्टा कट्टा तो है, इसको क्या देने की ज़रूरत है. देयर आर पीपल कि आप किसी को देते हो और वो बोल रहा होता है इस टाइप का. तब आपको क्या करना है, उसके सामने आपको मैजिक का लेक्चर उसको नहीं देना है. ठीक है, ग्रैटिट्यूड उसको नहीं समझाना है, आपको उस पर्सन को मन मन में ब्लेसिंग्स देनी है. ओके, दैट यस, मैजिक डस्ट उसके ऊपर आपको स्प्रिंकल करनी है कि मे दिस पर्सन गेट अ हैप्पी मील, या आज वो खुशी खुशी रहे, आपको उसको ब्लेस कर देना है. तो ये जो आपको सेवा वाला भाव है, ये आपको इनकॉर्पोरेट करना ही है. एंड ये जो हम वीडियो आपको संग ऑडियो शेयर करेंगे, उसमें भी यही बोला जाता है कि यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी. ठीक है, आज ही था, आई वॉज गोइंग इन द कार टू अ साइट एंड देयर वाज अ स्मॉल गर्ल एंड आई फेल्ट दैट सम गाइज वर मेकिंग फन ऑफ हर और टीजिंग हर रोड पे. एंड I was feeling very helpless कि हम क्या कर सकते हैं. Then I immediately sprinkled magic dust on her कि that she is safe and happy. I could not do anything else. हाँ, like what can I do? Like a small street kid, उसको लोग चिढ़ा रहे थे, something they were doing and I felt it was not okay. हाँ, कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके जान पहचान का है, तो I could only do that. तो आपको देखना है कि like wherever you can sprinkle this magic dust, wherever you can give blessings, बस आप करिए.
माने आपके मन में आना नहीं चाहिए कि हम क्या करें सिचुएशन में, इमीडिएटली करना है आपको। यू कीप चॉकलेट्स, यू कीप बिस्किट्स एंड यू नो छोटे छोटे, इट्स नॉट दैट आपको बहुत कुछ रखना है कि घर में कोई डिलीवरी बॉय आया, हाँ तो कितनी बार आपने उसको दे दिया टिप, 5 रुपी 10 रुपी जो भी मन है वो वैसे दे दीजिए उसको। कितनी बार होता है कि आपके घर में स्वीट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, फेस्टिव सीजन है तो एक चॉकलेट दे दीजिए उसको, एक मिठाई दे दीजिए, यू नो जैसा आपका मन करे, जैसी श्रद्धा है आप उसके लिए करिए। ओके, एंड आई एम नॉट सेइंग कि घर का जो स्टाफ है उसको भी देते जाइए और फिर एक दिन नहीं देंगे, फिर आपको लगेगा अरे कल तो मैंने उसको मिठाई दी थी, देखो ये तो आज मेरे लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकता है। अगर ऐसी फीलिंग आएगी तो घर के लोगों को या जो आपके जनरल एम्प्लॉयज़ हैं उनको फिर मत दीजिएगा। जब दें तो आप मान के चलिए कि आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये फीलिंग के संग आपको देना है। ओके, सो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एक आपको सोसाइटी को रिटर्न करना ही करना है, और दूसरी क्या थी, आई फॉरगॉटन, देन वील डिस्कस। ओके, यस, या प्लीज रीड। The ideal way to move forward from here is to, ma'am, please turn the page. Yeah, I have done that. Maintain the foundation of gratitude you have built and gradually keep building on it through increasing your depth of feeling. The more practice gratitude, the deeper you will be able to feel it, and the more deeply you feel it, the less time you will need to give it as Yes. a guide. या जस्ट 1 सेकेंड। तो रोंडा बनम से कह रही कि जैसा अभी तक हमने फाउंडेशन बनाया है पिछले 27 डेज में, हमको उसको और बढ़ाते 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 ही चले जाना है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, हमारी फीलिंग्स और ज़्यादा बढ़ेंगी, ठीक है। लाइक आपने अपने स्पाउस को या अपनी गर्लफ्रेंड को जब फर्स्ट टाइम आई लव यू बोला होगा, आपकी उतनी डीप फीलिंग्स थी क्या ऑनेस्टली? हो सकता नहीं हो, अरेंज मैरिज में तो कितने बार लोग फोर्सफुली हो सकता है बोलते हैं, जैसे पिक्चर में दिखाते हैं, आई डोंट नो, ठीक है। तो शुरू में कम होती हैं, बाद में ही बढ़ते 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 होती है ना, यही होता है ना। जब आपने फर्स्ट टाइम कॉफ़ी भी पी थी आपको कड़वी लगी होगी, लेकिन आज आप कॉफ़ी के बिना कुछ सोच ही नहीं सकते, होता है ना ऐसा। पहले जब आपने चाय भी पी होगी तो हाँ सबकी देखा देखी में पी ली, कड़वी लग रही लेकिन फिर भी पी ली टू गिव कंपनी टू एवरीवन, बट नाउ आँख खुलते ही आपको चाय चाहिए, है ना। तो क्या होता है, फीलिंग्स और बढ़ती चली जाती हैं। हाँ, आपका पेट भी आया होगा, आपका बेबी भी होगा, शुरू में आया होगा, आई हैव सीन इट, हाँ दैट इज आई हैव नो एक्सपीरियंस बट आई हैव सीन। ये तो सोता ही नहीं है, जब देखो रोता रहता है, सूसू पॉटी यही वो खाना पीना इसी में लगा रहता है। बट नाउ व्हेन यू थिंक ऑफ इट, उस समय आपको लगा इसके लिए इतना मैं तो सो ही नहीं पा रही हूँ, आई हैव सीन इट, आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल। फिर अब देखो, अब वो ये तो मेरे इसको छोड़ के उसके पास क्यों चला गया बच्चा, आई हैव सीन दिस ऑल्सो, अब ऐसा हो गया है या। तो आप देखिए फीलिंग्स और बढ़ती चली जाती हैं। तो सेम वे इट इज़ एप्लीकेबल इन एवरी एरिया। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी फीलिंग्स और बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो और वो कैसे बढ़ेंगी, क्यों बढ़ेंगी, शी इज़ टेलिंग अस। अब देखिए बुक ने तो हमको रोज़ एक प्रैक्टिस बोलिए करने के लिए, हाँ लाइक इन द जिम व्हेन यू गो, ट्रेनर आपको शुरू में बोलेगा कि अरे तुम तो इतने दिन पहली बार तुम जिम आए हो, तुमको फुल बॉडी वर्कआउट करनी है, ठीक है। आपने फुल बॉडी वर्कआउट कर ली, फिर आपने देखा कि अरे मेरे तो आर्म्स फ्लैबी हैं, मेरे को इनको ठीक करना है, मेरे को तो अपना टमी टाइट करना है या बाइसेप्स बनानी है, व्हाटएवर लाइक जिसका जो एरिया है। तब आप क्या करते हो, ट्रेनर आपका क्या कराता है, कुछ एक जनरल कराता है और कुछ एक स्पेसिफिक एरिया पे कॉन्सेंट्रेट कराता है ना। आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, जनरल हेल्थ की चीज़ें की आपने, फिर आप बोलोगे नहीं मेरे को तो स्किन में ग्लो चाहिए, तो मे बी आपको टमी क्लीनिंग की मेडिसिन बता देगा या जो भी कुछ बताएगा, आई डोंट नो, उस एरिया पे फिर वो फोकस करता है। तो आज से हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि अब ये सेशन फिनिश हो गया, आप अपने लाइफ में किस एरिया पे फोकस करके उस एरिया में आपको मैजिक चाहिए, ठीक है। तो हमको क्या करना है ये हमको पता है, हमने फोकस ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस की हैं। बट नाउ आफ्टर दिस बुक हाउ डू वी यूज दिस बुक एज द गाइड टू अट्रैक्ट मैजिक इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके, सो लेट्स रीड। As a guide, 3 days a week of remember the magic or combining it with 2 other magical practices of your choosing should maintain your current foundation of gratitude and keep building the magic in your life so that your life continues to get better and better. For example, you might choose to do remember the magic on one day, magical relationships on the second, and magic money on the third day.
यस तो अभी जो प्रैक्टिसेस आप रोज कंटिन्यूअसली करते चले आ रहे हैं फ्रॉम डे 0, रोंडा बहन कह रही हैं कि आफ्टर द 28th डे, माने कल जो आप रिमेंबर द मैजिक की प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आपको क्या करना है। अब आपकी पूरी लाइफ है आगे, ठीक है, आपने देखा कि हाँ मैजिक प्रैक्टिसेस करके आपकी लाइफ अच्छी हो रही है, तो अब क्या करें, ठीक है। सो शी इज टेलिंग अस, अगर आप रोज मैजिक प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हो रोज, सो व्हाट यू कैन डू इज हफ्ते में 3 दिन, ओके, यू व्हाट इफ यू डू द प्रैक्टिसेस थ्राइस अ वीक, दैट्स ऑल, तो क्या होएगा, इट विल मेंटेन योर करंट फाउंडेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड, ठीक है, माने अभी जो आपने फाउंडेशन बनाया है वो सेम रहेगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी धीरे धीरे लाइफ में मैजिक आए, इट विल कंटिन्यू, बट आपकी लाइफ अच्छी होती जाएगी, बट ऑफकोर्स एट अ स्लोअर पेस। यस आप हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज करेंगे और आप खा रोज रहे हैं, कंप्लेंट रोज कर रहे हैं, और सिर्फ हफ्ते में 3 दिन आप ग्रैटिट्यूड करोगे तो क्या होएगा, धीरे धीरे लाइफ अच्छी होएगी, फाउंडेशन तो अच्छा बन गया है, हाँ, बट ट्रस्ट मी 3 दिन होता नहीं है, 3 दिन खाली एक्सरसाइज होती है, खाली 3 दिन डाइट होती है, नहीं होती है। तो दिस इज आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड दिस, बट आपको लगता है हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 3 दिन कर सकते हैं, तो आप ये करिए। शी इज टेलिंग अस क्या करना है, आप अपने लाइफ में जो भी एरिया आपको चूज करना है वो चूज कर लीजिए। आपने क्या किया, हफ्ते में 1 दिन आपने रिमेंबर द मैजिक किया ऑन 1 डे, मैजिकल रिलेशनशिप्स वाली जो प्रैक्टिस थी डे 3 की, 1 दिन आपने वो कर ली, एंड मैजिक मनी आपने 1 दिन कर ली। इसी तरह आप कुछ भी चूज कर सकते हो अपने लिए, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके, बट आई एम नॉट हैप्पी विद दिस एंड आई एम श्योर नन ऑफ यू आर, ओके। सो नेक्स्ट लेवल इज विच वन, प्लीज रीड। 4 days week of remember the magic or incorporating it with 3 other magical practices of your choosing will maintain your gratitude and accelerate the magic. यस तो अगर आपको चाहिए कि थोड़ा एक्सेलरेट हो जाए, ठीक है, अभी जो आपने फाउंडेशन बना लिया है, अभी तो आपने कुछ कुछ कंप्लेंट्स को आपने नेगेट किया है, लाइफ में थोड़ी सी हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी लेके आई है, और आप चाहते हो कि वो और बढ़ती जाए, तो क्या करना है, आपको हफ्ते में 4 दिन करना है। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस ऑल्सो, ओके, 4 दिन भी अगर आपको करना है तो शी इज टेलिंग अस रिमेंबर द मैजिक करिए, और 3 कोई भी और प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको अगर सिर्फ रिलेशनशिप पे वर्क करना है तो 2-3 रिलेशनशिप की कर लीजिए, मनी पे कॉन्सेंट्रेट करना है मनी पे कर लीजिए, या हेल्थ पे कर लीजिए। इफ़ यू वांट अ लिटिल एक्सेलरेशन इन द मैजिक, डू 4 days a week. Please read the next level. Yeah. 5 days a week of remember the magic or incorporating it with 4 other magical practices of your choosing will dramatically increase your happiness and the magic in every area and circumstance of your life. यस तो शी इज टेलिंग 5 days में क्या होगा, ऑफ कोर्स आप 5 दिन प्रैक्टिस करोगे तो आपकी लाइफ में ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाएंगी, ओके। तो इफ़ यू फील कि आप हफ्ते में 5 दिन कर सकते हो, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी, तो आप ये कर लीजिए, एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन से स्टार्ट करेगा। ये 3-4 वाले नहीं होते हैं, 3-4 में क्या होता है, 3 दिन आपने एक्सरसाइज की तो वैसे तो होगा नहीं, धीरे 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 हेल्थ और अच्छी होती जाती है। 4 दिन में क्या होगा, 3 दिन तो आपने अच्छा की, चौथे दिन आपने एक समोसा खा लिया, एक पेस्ट्री खा ली, क्रिसमस सीजन है, इधर उधर गए आपने खा लिया, बस हो गई प्रैक्टिस, हो गई ना। आप पार्टी में गए, आपने देखा उसकी ड्रेस देखी, उससे देखो कैसे बाल बनाए हैं, उसको देखो डांस कैसे करी, बस सब ग्रैटिट्यूड ब्लेसिंग सब फाउंडेशन मिलने लग जाएगा ग्रैटिट्यूड का, ठीक है, ये भी नहीं चाहिए। एटलीस्ट 5 दिन आपको प्रैक्टिस करना है। शी इज टेलिंग अस आपको ये करने से आपके लाइफ में ड्रामेटिकली मैजिक इंक्रीज होएगा। ट्रस्ट मी 5 दिन भी मिस ही हो जाते हैं। आई ओनली बिलीव इन डूइंग द प्रैक्टिसेस एवरी डे। क्या आप बोल सकते हो आप हफ्ते में 4 दिन फूड को ग्रैटिट्यूड करोगे, 2 दिन मैजिक फुट स्टेप्स करोगे, कैन यू डू दैट? बाकी दिन भूल जाएंगे, फिर तीसरे दिन याद आ जाएगा, नहीं, यू हैव टू डू दीज एवरी डे, ओके। सो लेट्स सी व्हाट शुड वी बी डूइंग। 6 or 7 days a week of remember the magic or incorporating it with any other magical practices of your choosing, and you will become the true alchemist who can turn everything into gold. यस तो हमको यही करना है कि रोज आपको रिमेंबर द मैजिक करना है। क्या आपको सुबह उठ के अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है, या कल में जो अच्छी चीज़ें हुई हैं, जो यूनिक चीज़ें हुई हैं, उनके बारे में आपको लिखना है, या उसके संग आप दूसरी कोई भी प्रैक्टिस इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आप चाहते हो कि आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो जाएं और अच्छे होते चले जाएं, आपको सिर्फ मैजिकल रिलेशनशिप और क्या ना पीपल हु चेंज योर लाइफ, रिमेंबर दोज पीपल, इस टाइप की जो प्रैक्टिसेस हैं वो कर लीजिए, या आप मनी की कर लीजिए, डे 1 दिन हेल्थ मनी वो वैसे कर लीजिए। एंड सिर्फ मन में सोचने वाली नहीं, लिखने वाली भी,
ये भी हमको रॉडा बर्न बताएंगी। एंड व्हेन वी आर डूइंग द प्रैक्टिसेस एवरी डे, तब क्या होगा, हम लोग एक ट्रू अल्केमिस्ट बन जाएंगे। कैसे? हम जो चाहेंगे, जिस चीज़ को चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, हमारे लाइफ में वैसे ही होने लगेगा, है ना। जैसे आपने सुना ना पल्लवी जी या बहुत सारे जन ने शेयर किया ना कि उन्होंने मैग्निफिसेंट आउटकम लिखा और वो जैसा चाह रहे थे वैसे वैसे होता जा रहा था। ये कब होगा? जब आपने पहले अपना ग्रैटिट्यूड का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया है और सारी प्रैक्टिसेस आप डेली बेसिस पे हैबिट बना के करते चले जा रहे हो। ओके, तो इसको वैसे करना होगा, तब आपके लाइफ में जो आप चाहोगे, जैसा चाहते हो वैसा होता चला जाएगा। प्रोवाइडेड आप ग्रैटिट्यूड में ही हो पूरे टाइम। व्हेन यू हैव मेड ग्रैटिट्यूड योर वे ऑफ लाइफ, लाइफ विल बिकम मैजिकल। या सो लेट्स रीड। या यस जागृति। And please turn the page. Yeah, I have turned it. Magic practice recommendations. To keep the magic continuing in the important areas of your life, like your happiness, health, relationships, career, money, and the material things you own, you could do the specific practices for each area once a week. However, if you want to increase the magic in any area of your life, you should give more through an increased practice of gratitude for that area several days a week. If you are unwell, you will want to do the magical practices for your health every day, if not multiple times in a day. यस तो रॉन्डा बर्न कह रही है कि अगर आपको लगता है आपकी सारी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा ही चल रहा है, ठीक है, या सब कुछ आप चाहते हो और अच्छा हो जाए, सब कुछ लाइक आप चाहते हो हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट हो, मनी भी अच्छा हो जाए, रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाए, तब आपको क्या करना है, हर प्रैक्टिस एक एक करके करते जाइए, जैसे बुक में हमको बताया है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डे 1 2 तो ईजी है, ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक तो आप रोज कर ही रहे हो, आप डे 3 से फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट्स लाइक डे 28 हमारा कल है, परसों सुबह उठते ही आप डे 3 का चैप्टर पकड़ के डे 3 4 5 6 ऐसे करके पूरी बुक आप रोज एक एक एक्सरसाइज करते चले जाइए अलॉन्ग विद योर मैजिक रॉक एंड योर ब्लेसिंग्स। उससे क्या होगा, आपके लाइफ में हर एरिया में इंप्रूवमेंट आने लगेगा। बट आपको लगता है कि नहीं, मेरे को कोई एक एरिया पे फोकस करना है। इट्स लाइक इफ यू फील, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आपको एक एरिया में बहुत सारे मैजिक की जरूरत है, ठीक है। इट्स लाइक इन वन पर्टिकुलर एरिया जो आपकी ड्रीम का एरिया है, आप चाहते हो उसी में मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन रहे, तब आपको उस एरिया के लिए फोकस प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। कैसे? शी इज टेलिंग अस दैट इफ यू वांट मैजिक इन द एरिया ऑफ हेल्थ, तो आप क्या करोगे, उसी की प्रैक्टिसेस करोगे सारी। शी इज टेलिंग अस रोज करोगे, अनलेस यू कैन इवन डू इट मल्टीपल टाइम्स इन अ डे। या मतलब आपकी इच्छा है, आप चाहते हो कि आप हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट करो, तो आप दिन में रोज विजुलाइज करो, वो जो हमारी हेल्थ वाली प्रैक्टिसेस थी ना, कि आप विजुलाइज कर रहे हो कि आप एकदम ठीक हो गए हो, आपने 3 अच्छे एनर्जेटिक दिन या टाइम्स याद किए अपने पास्ट के, करंट के 5 अच्छी चीज़ों के लिए आपने ग्रैटिट्यूड किया, फिर फ्यूचर में जिस पार्ट में आप इंप्रूवमेंट चाहते हो उसके लिए आपने विजुलाइजेशन किया। दिस यू कैन डू मल्टीपल टाइम्स इन अ डे। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। ओके, कोई एक एरिया में चाहते हो तो उन्हीं की प्रैक्टिसेस लेके आप उस पर वर्क करो। या सो लेट्स रीड। The following recommendations will easily guide you towards the magical practices that will have the strongest and the fastest effect in that area. Follow the recommendations in the relevant area for 3 weeks minimum, doing each recommended practice once a week. यस तो अब रॉन्डा बर्न ने क्या है, बुक में जो 28 प्रैक्टिसेस हैं उनको उन्होंने हमारे लिए क्लब करके एक सेक्शन बना दिया है कि जैसे सपोज आपको रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आपको ये जो सेट वो बताएंगी वो आपको करना है फॉर मिनिमम 3 वीक्स। ओके, तो वो जो बात है वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। एंड शी इज टेलिंग अस उससे हमारे लाइफ में जिस एरिया में अपन चाहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फास्टेस्ट इफेक्ट होएगा। ओके, सो लेट्स रीड हाउ शी हैज कंबाइंड देम। या सो इफ यू वांट इम्प्रूवमेंट इन रिलेशनशिप्स, तो आपको ये वाली प्रैक्टिसेस करनी है। सो जागृति, जस्ट रीड द हेडिंग्स। Yes, ma'am. Relationships. Magical relationships. Magic dust everyone. Magically heal your relationships. The magic wand. The magic wand practice can be used on people you know using photographs or on people you don't know without photographs. The magic mirror. Remember the magic.
यस तो अगर आपको अपने रिलेशनशिप पे वर्क करना है तो आप देखिए उन्होंने हमको क्या क्या बताई हैं प्रैक्टिसेस। मैजिकल रिलेशनशिप, मैजिक डस्ट एवरीवन, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स, मैजिक वॉन्ड एंड मैजिक मिरर भी बताया है। ठीक है, रिलेशनशिप में हमेशा 2 ही जन होते हैं, मिनिमम तो 2 जन होते ही। आपको किसी और के संग रिलेशनशिप इंप्रूव करना है तो आपको पहले अपने संग जो आपका रिलेशनशिप है पहले तो आपको उसको इम्प्रूव करना है। तो इसलिए उन्होंने ये वाली प्रैक्टिसेस दी हैं कि अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप के एरिया में इम्प्रूवमेंट हो या आपकी ड्रीम में आपने रिलेशनशिप के बारे में लिखा है तो आपको ये सारी प्रैक्टिसेस करनी है अलॉन्ग विद राइटिंग योर ब्लेसिंग्स एंड योर मैजिक रॉक। Okay, now if you want improvement in health, Jagriti, you don't have to read the explanation of this magic wand. Okay, ये हमको पता है, आप यहाँ ये आप खाली headings पढ़ना। Yeah. Health, magic dust everyone, magic and miracles in health, the magical air that you breathe, the magic wand, remember the magic. यस तो अगर आप हेल्थ में चाहते हो मैजिक तो आपको ये सारी प्रैक्टिसेस करनी है। अच्छा अब आप देखिए यहाँ पे उन्होंने ये मैजिक वॉन्ड दिया है। ये क्यों दिया है? मैजिक वॉन्ड तो हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो हमको हमारी हेल्थ में चाहिए इंप्रूवमेंट तो हम दूसरों के ऊपर मैजिक वॉन्ड और मैजिक डस्ट क्यों करेंगे? बोलिए। बिकॉज रॉन्डा बन ने हमको बताया व्हाट वी गिव इज व्हाट वी विल रिसीव। हम सिर्फ अपने अपने पे ही फोकस करते रहेंगे और हम दूसरों को कुछ देंगे ही नहीं तो हमको वो ब्लेसिंग्स कैसे मिलेंगी? हमको हमारे लाइफ में हैप्पीनेस घूम के कैसे आएंगी? आप अपने लिए कर रहे हो, मैजिकल हेल्थ कर रहे हो और आपको तो मैजिक इंग्रेडिएंट तो रोज ही करना है हमको। ओके, फूड एंड वाटर के लिए रोज आपको ग्रैटिट्यूड करना है, वो विदाउट डाउट आप रिलेशन हेल्थ मनी किसी में भी हो वो आपको करना ही करना है। तो अगर आप हेल्थ पे वर्क कर रहे हो तो आपको दूसरों को भी मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करना है, मैजिक वॉन्ड भी करना है। ओके, so let's continue with the area in money. Yeah. Yes, Jagriti. Jagriti, we can, I think we'll hear you now. Say. Use the magic word, फिर सुन लेंगे हम लोग। Yes. And the next slide is not visible. I think Jagriti, there is some network challenges in your zone. Money, magic Yes. money, the money magnet, the magic check, the magic wand, the magic mirror, remember the magic. यस तो अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में मनी में आए तो आपको ये सारे प्रैक्टिसेस करने हैं। एंड ट्रस्ट मी, आप अगर वैसा कर रहे हो जैसा हमने अपने लिए स्ट्रक्चर बनाया, हमने क्या किया है, लाइक आई टोल्ड यू, हम जो चीज़ यूज़ करते हैं स्पेशली इन द मॉर्निंग वो मेरे को याद आ जाती है। इट्स नॉट दैट कि हमको पूरे टाइम अपने बचपन की चीज़ें याद आती रहती हैं, हम बोलते रहते हैं, बट जब कभी कुछ स्ट्राइक करता है इमीडिएटली थैंक माई पेरेंट्स। कोई आंटी याद आई या कोई बुआ याद आ गई या कोई ट्रीट याद आ गई, हम तुरंत उनके लिए थैंक यू कर देते हैं। आप देखो अगर आपने उसको 3-4 दिन भी किया ना तो आपके कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे आपको पता नहीं। जैसे मेरे कल आए हैं, तो इसीलिए आई एम शेयरिंग दिस विद यू। कल मेरे 3 जगह से पैसे आए। कोई टैक्स का कुछ रिफंड आ गया, लाइक वाओ ये तो हमने सोचा ही नहीं था, वो तो पिछले साल का आता है ना, तो कब आ जाता है पता नहीं। देन व्हाट हैपेंड, आई वाज सपोज टू गेट सम मनी फ्रॉम माय ब्रदर, ही सडनली सेड लाओ तुम्हारे कितने पैसे बाकी हैं, लाइक वाह ये भी हो गए। एंड देयर वाज सम स्मॉल मनी समवेयर, हाँ मेरा ओल्ड फोन सेल हो गया एंड आई वाज सो हैप्पी, वाह इसके लिए तो मेरे को कुछ, आई थॉट मेरे को जो भी मिलेंगे वाले लाइक ना ओके टाइप्स मिलेंगे, एंड आई वाज सो हैप्पी। 3 जगह से कल ही पैसे आ गए, कैसे आए? एंड देन आई नोटिस लाइक आई एम टेलिंग यू, हम वही कर रहे हैं। हाँ ऑफ कोर्स ये तो कर ही रहे हैं, जो पैसे जाते हैं हाथ से आपको उनको ग्रैटिट्यूड के संग देना है, जो आ रहे हैं वो ग्रैटिट्यूड के संग लेना है। देखिए ये हम बार बार आपको बोल रहे हैं क्योंकि क्या होता है ना, आप लोग कुछ शेयर नहीं कर रहे हो मनी के एरिया में मैजिक, तो मेरे को लगता है क्या पता कहीं आप वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, बिकॉज ये सब करने से मनी आएगा ही आएगा, देयर इज मैंने आता ही है वो तो। और हम जब देख रहे हैं लाइक व्हेन आई एम टेलिंग यू तो हम और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आएगा ही आपको। ओके, एंड दीज आर वेरी इजी थिंग्स कि आपने कुछ खाया, आपको याद करें, हाँ बचपन में तो हम रोज़ ब्रेकफास्ट में यही खाते थे, दूध कॉर्नफ्लेक्स खाते थे, ब्रेड खाते थे, सैंडविच खाते थे, यू नो कि सैलड खाते थे, क्या खाते थे आप वो याद करिए और उसके लिए थैंक यू करिए अपने मम्मी पापा को या दादा दादी को, नाना नानी के यहाँ गए वहाँ पे, बुआ भाभी चाची किसके यहाँ आपने क्या खाया वो याद करिए कुछ। और ये भी नहीं कि आपको बैठ के लिस्ट बनानी है, एक्चुअल में तो मनी मैग्नेट वाला जो मैम ने सेशन कभी लिया होगा, हमने नहीं वो अटेंड किया था, शी हैड टोल्ड अस कि वो 5 दिन सिर्फ यही सब चीज़ें कराती हैं जो हमने आपको थोड़ी थोड़ी कुछ जो उन्होंने जितनी हमको, हमने वो नहीं किया था तो मेरे को वो नहीं पता। शी यूज्ड टू टेल अस दिस ओनली कि आपके पास जो है
मतलब जैसे हमने आपके संग शेयर किया ना, आप अपनी ज्वेलरी देखिए, आप अपने बैंक स्टेटमेंट्स देखिए, उनको देख देख के बहुत रिच फील करिए कि वाओ आई हैव सो मच, आई हैव गॉट सो मच अबंडेंस, थैंक यू भगवान जी। एक ये करिए। पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, उनके लिए आपको बहुत ग्रैटिट्यूड के संग देना है। जब आप कोई भी नेगोशिएशन कर रहे हैं, आई नॉट से कि हैगल कर रहे हैं, नहीं, आप नेगोशिएशन कर रहे हैं, प्राइस आप फाइनलाइज कर रहे हैं, उस समय आपके हाथ में पैसे नहीं होने चाहिए। सब नेगोशिएशन कर लिया, थैंक यू भगवान जी, जय लक्ष्मी माता, मन में जो भी आपको बोलना है, अच्छी फीलिंग के संग पैसे जाने हैं, ठीक है। सेकेंड, बचपन की चीज़ें याद कर करके आपको थैंक यू बोलना है, ओके। दीज आर वेरी सिंपल स्टेप्स, और आपके लाइफ में कैसे ये सेट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्स के ऊपर लिखना ही है थैंक यू पेड, थैंक यू फॉर द मनी। ये सब आपके ना, ये देखिए, ये बता रही है यहाँ पे, बट दिस शुड बी लाइक योर एवरीडे थिंग। आपको अलग से उसके लिए कुछ टाइम ही नहीं निकालना है। आप ये सब प्रैक्टिसेस करोगे तो मनी आएगा ही आएगा, गिफ्ट्स आएंगे ही आएंगे, ओके। सो प्लीज डू दिस इफ यू वांट मोर मनी, ये सब करना ही होएगा, ओके। सो प्लीज रीड। यस जागृति, कैरियर, या Here. Works like magic. Magic dust everyone. The magic wand. The magic mirror. Remember the magic. या सो शी इज टेलिंग अस वर्क्स लाइक मैजिक। तो हमने किया ही था कि आपको इमेजिन करना है कि आपके संग एक मैनेजर पीछे चल रहा है, पूरे टाइम वो नोट कर रहा है कि हर चीज़ में थैंक यू कर रहे हो आप, ठीक है। मैजिक डस्ट भी आपको दूसरे के ऊपर करना है। जितना ज़्यादा आप दूसरों को ब्लेसिंग्स दोगे, थैंक यू करोगे, आपके लाइफ में अच्छा होगा ही होगा। अब मैजिक वॉन्ड में उन्होंने ये न्यू चीज़ ऐड की है कि इस वाले ही टॉपिक में, कि जब हम दूसरों के लिए मैजिक वॉन्ड यूज़ कर रहे हैं कि उनके कैरियर में सक्सेस मिले, तो दूसरों के लिए सक्सेस विश करेंगे तो हमारे लाइफ में वो एक्सेलरेट होगा ही होगा, ओके। सो व्हाट अगेन इट इज रिकन्फर्मिंग कि जब हम दूसरों के लिए अच्छी चीज़ें विश करेंगे तो वो हमारे लाइफ में घूम के आएंगी ही आएंगी, ओके। सो नाउ दीज आर द प्रैक्टिसेस। अब हाँ, यस, योर डिजायर्स, या योर डिजायर्स मतलब आपको अपनी ड्रीम लिस्ट, अपनी विशेस कैसे फुलफिल करनी है। सिर्फ जैसे सब कुछ अच्छा चल रहा है, हेल्थ भी अच्छी है, रिलेशन भी अच्छा है, मनी भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी कुछ इच्छाएं हैं जो आप चाहते हो जाए, मे बी योर मैरिज, योर किड्स मैरिज, या बच्चों की नाती पोती की मैरिज, आई डोंट नो, उनके एग्जाम्स, उनकी जॉब, हाँ, या अपना जॉब, इस टाइप की आपकी जो कोई डिज़ायर्स हैं, या कुछ मटीरियल डिज़ायर्स हैं, जैसा हमने डे 0 पे जो लिस्ट बनाई थी, उनको अगर आपको अपने लाइफ में और जल्दी अट्रैक्ट करना है तो क्या करना है। या प्लीज रीड। Your desires. Magic dust everyone. Make all your wishes come true. Before your very eyes, the magic wand, the magic mirror. Remember the magic. यस तो इसमें भी आप देखिए उन्होंने क्या बोला है, मैजिक डस्ट एवरीवन। क्योंकि जब तक आप दूसरों को दुआओं, खुशियाँ, इन सब की विशेज़ नहीं भेजोगे, आपके लाइफ में भी वो धीरे धीरे ही आएंगी, ओके। तो ये आपको करना ही, इसकी तो आप हैबिट बना लीजिए कि मेड जा रही है, आते टाइम हो सकता है कि आपको लगे कि अरे इतनी लेट आई, इतने बजे आई, ये आई नहीं आई, आपको कुछ विशेज़ नहीं निकल रही हैं, तो एटलीस्ट वो जा रही है तो आप उसके ऊपर मैजिक डस्ट कर दो कि टाइम से घर पहुँच जाए, उसके घर में बच्चे हैं, हैप्पीली वो सोए, कल टाइम से आ जाए, खुशी खुशी, हेल्दी हेल्दी, आप ये कर दो, ठीक है। मेक ऑल योर विशेज कम ट्रू, ये वाला चैप्टर आप पढ़िए, क्या था, नहीं थी, लिस्ट बनाया, क्या था वो करिए। आपको विजुअलाइजेशन करना ही है, दैट इज़ दी मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिस टू अट्रैक्ट योर ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स। बिना विजुअलाइजेशन के बहुत टाइम लगेगा, ओके। आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, डिपेंडिंग ऑन आप कितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, कितनी ब्लेसिंग्स करते हो। विजुअलाइजेशन सबसे पावरफुल है। पावर बुक में सिर्फ विजुअलाइजेशन के बारे में बोला जा रहा है, सीक्रेट बुक में सिर्फ विजुअलाइजेशन के बारे में बोला जा रहा है। इस बुक में हमने जस्ट टच किया उसको, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि हमको पता ही है कि विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रैटिट्यूड कलेक्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बुक के लिए, बट विजुअलाइजेशन अपनी ड्रीम्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा फीलिंग्स हम पॉजिटिव रखेंगे, उतनी जल्दी जल्दी हमारी ड्रीम्स फुलफिल होंगी, ओके। सो वो करना है बिफोर योर वेरी आइज। आपको पता ही है, आपको अपनी लिस्ट लेके घूमना है, जब आप देखो उसको आपको दिल से थैंक यू करके पढ़ना है, ओके। या मैजिक वॉन्ड अगेन, व्हेन यू आर गिविंग टू समवन, देन ओनली यू विल रिसीव इट इन योर लाइफ। या योर मैजिक रॉक। Your magic rock. You can make the magic rock practice a part of your daily life by continuing to keep the magic rock by your bedside and using the time you get into bed as your reminder to be grateful for the best thing that happened that day. You can also carry your magic rock with you in your pocket, and every time you touch it, use it as your reminder to think of something
you are grateful for. यस तो मैजिक रॉक देखिए किसी में उन्होंने अलग से इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। आपको रोज ही करना ही है, ठीक है, चाहे आप कुछ भी ये सब मत करो, ब्लेसिंग्स लिखना और मैजिक रॉक करना ही करना है आपको डेली। शी इज टेलिंग अस अगर आप रात में तो करना ही है। इफ़ यू फील आप एक सेपरेट मैजिक रॉक रख लीजिए पॉकेट में। आई विल नॉट से कि आप अपना बेड साइड वाला ही पॉकेट में रखिए वरना तो वो खो ही जाएगा, ठीक है। दैट इज आई एम नॉट सेइंग हो ही जाएगा बट आई फील कि 2 रख लेना बेटर है, ठीक है। या आपको लगता है कि हाँ बैग में लेके गए, तो मेरे को लगता है ना क्या होता है, पॉकेट में तो कोई रखेगा नहीं, बैग में ही रखेगा, है ना। जब बैग में रखेगा और आप सोने जा रहे हो तो वो बैग में ही रह जाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर आपको लेके उसको अपने संग घूमना है तो आप 2 ठो रख लीजिए। इफ़ यू फील कि पॉकेट में रखा आपने, जैसे सीक्रेट मूवी में दिखाया गया था, एंड यू फील आप आओगे आप पॉकेट से निकाल के बेड साइड पे रख लोगे तो आप वैसे कर लीजिए, बिकॉज ये बहुत पावरफुल है। सोने के टाइम पे हैप्पी फील करके सोना, ग्रैटिट्यूड फील करके सोना बहुत पावरफुल है। ओके, सो नाउ दिस वन मोर अमेजिंग प्रैक्टिस जो किसी और में नहीं लिखी हुई है। शी इज एक्सपेक्टिंग अस टू डू दिस एवरी डे। यस प्लीज रीड। Your magic dust. You can also make the magic dust everyone practice a part of your daily life. Other than sprinkling magic dust over the people who serve you, there are many more ways to continue using this practice. You can sprinkle magic dust over everyone and everything. If your boss is a bit grumpy, you can secretly sprinkle magic dust over him or her. You can sprinkle magic dust over a family member or loved one if they are in bad mood, or anyone you come across who needs some magic in their life. You can also add magic dust wherever you go and sprinkle magic dust over babies and children, over your plants or garden, your food and drinks, your computer or your mail before you open them, your wallet, car, your phone before you take or make a phone call, or over any circumstance that you want to improve. There, the many applications of magic dust are limited only by your imagination. यस तो आप देखिए ये जो मैजिक डस्ट है ये कितनी पावरफुल है। आप इसको कहीं पे भी कभी भी स्प्रिंकल कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। कि आप ये सेशन में भी आ रहे हो, लाइक आई टेल यू। अच्छा ये इन्होंने बहुत एक पावरफुल प्रैक्टिस कहीं नहीं बोली, कौन सी बोली है तो पल्लवी जी, कौन सी नहीं बोली? मैग्निफिसेंट आउटकम, है ना। Yes, वो कहीं नहीं yes. लिखा है, वो सबसे पावरफुल है। माने वो तो ऐसे बोलते हैं ना जैसे कि अरे ये चाहिए, जैसे बोलते हैं ना जीनी है वो तो कि ये चाहिए तो माने मैग्निफिसेंट आउटकम। इट इज लाइक दैट, वो इतनी पावरफुल है, वो तो मेरे लिए जीनी जैसी ही है। हाँ तो वो भी Yes. करना है। मैजिक डस्ट से तो मेरे को वो पावरफुल लगती है, बट शी इज टेलिंग अस मैजिक डस्ट इज आल्सो लाइक दिस। एंड ट्रस्ट मी मैंने ये ट्राई किया है, स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट ओवर अ फैमिली मेंबर। ये मैंने अभी रिसेंटली और ज़्यादा ट्राई किया है, ठीक है। तो ये भी करिए, ये भी बहुत अच्छा लगता है। और कुछ नहीं होता है ना तो खुद ही अच्छा लगने लगती है। देखा अब ये शांत हो जाएगा, मैंने उसके ऊपर मैजिक डस्ट कर दिया ना, ऐसी वाली फीलिंग आ जाती कि आई एम सो भगवान जी की कृपा है मेरे ऊपर, आई एम सो पावरफुल दैट आई कैन कंट्रोल दैट पर्सनस मूड, दैट विल बी क्वाइट एंड काम। हाँ ऐसी फीलिंग आती है कि अब मैंने मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दिए, अब उसका पूरा दिन अच्छा जाने वाला है। तो अभी शांत हो गया ये ऐसी फील आई, ट्रस्ट मी। एंड हमने ये बॉस तो कोई है नहीं मेरा, लेकिन हम क्लाइंट के ऊपर सोच रहे हैं कि अभी तक किया नहीं था, क्लाइंट के ऊपर भी मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करेंगे। आप फूड के ऊपर आपको करना ही है, वाटर के लिए आपको थैंक यू करना ही है, ठीक है। आप प्लांट्स, बेबीज, चिल्ड्रन, खाने के ऊपर दूसरों को आप खाना दे रहे हो घर में, ओके। आप ये नहीं कि आप किसी और को देखिए, कोई सोचे देखो ये क्या जादू टोना करी, नहीं ऐसे मत करिएगा। आप मन में कर दीजिएगा या अकेले में करिएगा उसके ऊपर, ठीक है। देन यू कैन डू इट। एंड व्हेन यू आर स्प्रिंकलिंग दिस मैजिक डस्ट, जो आपके मन में आ रहा है वो चीज़ बोली कि ये खाना खा के, जैसे आपने शेयर किया था पल्लवी जी, आई रिमेंबर फॉर योर हस्बैंड, आप वैसे कर सकते हो। आप अगर घर में कुछ भी है, मतलब जस्ट जनरल भी बोल सकते हो कि येस एवरीवन इन द हाउस इज फिट, फाइन एंड हेल्दी। जो ये खाना खाएं उनके शरीर में पॉजिटिविटी आए, दे आर गेटिंग ब्लेस्ड, दे आर इन प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड। जो आपके मन में आ रहा है आप उसको वो बोलिए, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं भगवान जी का नाम लेने से, फिर आप ये करिए, वैसे कर लीजिए। आप जो पॉजिटिविटी अपने मन में रखेंगे वो उस फूड एंड वाटर में ट्रांसफ़र होगा ही होगा। बाहर से कुछ आया है, आपको ध्यान है पहले क्या होता था, कुछ भी बाहर से खाना आता था, खाना मतलब कुछ मिठाई विठाई आती थी तो उसका भोग लग के ही जाता था। आपको नहीं लगता वो कितनी अच्छी चीज़ है? आई डोंट नो इफ आई हैव शेयर्ड दिस और नॉट, कि मार्केट में जो सब्जी नहीं, कुछ स्वीट्स एंड डेजर्ट्स रखे रहते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल, दे आर नॉट सो ब्लेस्ड टू बाय दैट,
बट दे वांट टू हैव इट। हम भी तो छोटे में ऐसे ही थे ना, छोटे में क्या, हम तो अभी भी ऐसे ही थे। बफे टेबल में जाते हैं, देखते हैं, ऐसा नहीं आता आपके मन में? बोलिए, आता नहीं कभी कभी? मेरे तो देखिए आता है, ठीक है, अब थोड़ा कम हो गया है, बट पहले आता हो ये खाएं कि वो खाएं, पेट भर गया, ये खाएं नहीं खाएं, मोटे हो जाएंगे पतले हो जाएंगे, आता है ना? तो आप सोचिए व्हाट इज हैपनिंग, वी आर ऑलरेडी ईटिंग दैट फूड विद आवर आईज। हम मन खा नहीं रहे उसको, बट हमारा मन चल रहा है उसको देख के। तो हमारी फीलिंग्स, कैसी फीलिंग्स जा रही हैं उस खाने पे? तो जो इंसान उसको खाएगा क्या होगा? हमने मूवीज में देखा है कि एक रिच पर्सन खूब मिठाई मंगवा रहा है, ये खा रहा है, एंड एक पुअर पर्सन आता है। यू सी, हमारी मूवीज बहुत इस टाइप की एक्सप्रेसिव होती हैं। तो हम लोग को समझ में आता है, देखो कि उस इंसान के सामने ऐसे खा रहा होता है, ठीक है। आपने देखा है कई कम्युनिटीज में लोग ऐसा करते हैं, खा रहे होते तो दे कवर देयर फूड, दे डोंट वांट आउटसाइडर्स टू सी व्हाट दे आर ईटिंग। व्हाई? बिकॉज उनकी नज़र कैसी है, क्या किस टाइप की मैजिक डस्ट वो स्प्रिंकल कर रहे हैं हमारे खाने के ऊपर, हमको नहीं पता। तो हम लोग उस नेगेटिविटी को जनरली जब भगवान के सामने भोग लगाते थे, पानी से उसका आचमन करते थे, तो वो क्या उसको हटाने के लिए था? अब अगर हम वो नहीं करें तो एटलीस्ट हम लोग उस खाने को ब्लेस करके उस नेगेटिविटी को, जिस इंसान ने वो लेके आया उसको हटा के खाएं। उसके नहीं तो एटलीस्ट जिस पर्सन ने उस खाने को बनाया है वो किस भाव से बनाया, वी डोंट नो, उस भाव को हटा के हम उस फूड को एनर्जाइज करके पावर दे के खा रहे हैं, ठीक है। सो ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बाहर का एटलीस्ट कुछ भी आप खा रहे हो, पक्का से उसमें तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसमें ब्लेसिंग्स और मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करके खाइए, ठीक है। तो स्टार्ट डूइंग दीज प्रैक्टिसेस एंड सी द मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ। हमको ये फील होता है, लाइक हम बोले ना कि अब मेरा सिस्टम बहुत अच्छा हो गया, हम कुछ भी खाते हैं, जब याद आता है तो खाते ही हैं, लेकिन बेस्ट आई फील इज़ द वाटर। खाने में हम कितने बार भूल भी जाते हैं, बट वाटर के टाइम हमेशा ही हम थैंक यू करके ही पीते हैं उसको, ओके। तो आप प्रैक्टिस करिए ये सब, लुक एट द वाटर, स्माइल एट द वाटर एंड देन हैव इट, okay. So these are some of the practices that you have to incorporate in your daily lives, and some you will be needing to do the focus gratitude, okay. So this is where we will stop today. Tomorrow we will start with the magic never ends, and thank you Jagriti and thank you Vivek for reading for all of us so nicely. So we'll do the gratitude and we'll take the questions and sharings tomorrow, okay. So just let's join our hands, close our eyes and pay gratitude to the supreme power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for this amazing journey of 28 days. Thank you for bringing us all here to understand and feel the gratitude even more. Thank you for all the blessings that you've shown us in the past 28 days and all the blessings that we'll keep on seeing and feeling each and every day in the coming years. Thank you, thank you, thank you. Thank you everyone for being here, and I'm sure Thank you, Priya ji. talking and amazing, and keep smiling, keep, and the new year will be just amazing, okay. So yes, Rupali ji, आपने 5-5-5 मेथड के बारे में पूछा है. I have heard of it, but I have never practiced, so I'll not be able to explain it or give any details about it. आप नेट पे देख सकते हो, बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि आपको 5 बार कुछ लिखना है, समथिंग ऐसा कुछ है, बट I have not done it. आप 3-6-9 के बारे में बोलोगे तो हम फिर भी बता सकते हैं, बट 5-5-5 I have not practiced, so I will not be able to tell you, okay. 5 दिन कुछ लिखना होता है, 5 बार, समथिंग ऐसी कुछ है इसमें, I had read it some time back, but I have not followed it, so I will not be able to tell you. Sorry, हाँ. So if someone knows, I think हेमा जी ने किया था, आप बता हिना जी ने किया था, आप बता सकते हो, so it will be nice. ओके, ठीक है. So I'll think probably कोई लिंक हो तो आप बता देना, ठीक है. So yes, Jagriti, you have a question or a sharing. What happened about your teacher? Ma'am, I went to pay the fees. So I was asking her that she should charge a bit less for offline classes. But when I went and I was asking the amount, she did not say anything. So after asking, she was telling me the higher amount as compared to the fees she's charging me. Whatever I thought, उसका उल्टा हो गया reality में. ओके, तो आपको क्या लगा ऐसा क्यों हुआ? She was asking me 200 more of the previous fees. She did not know that what fees she's charging me. She didn't remember. She's charging more for the students. So I told her that my fees is not that amount. So then she told, okay, you pay that amount.
but she didn't. There was no scope to get it reduced because there was already a student in the class, and my Okay. mom also did not say anything. She told ki had I told anything, she would ask us to pay even more. So she kept quiet and she paid the amount. But ma'am, I I felt really bad while paying the amount. To be very honest, I should not have been doing that. Although you had told us in the class that we should be happy, but ma'am, it is my nature. When I have to pay like in 4 digit, like 2,000 or 5,000, like that amount, so I feel कि आज कितना खर्चा हो गया, मैंने बहुत पैसे स्पेंड कर दिए, ये वो मैं हाँ, तो गलत सोच जागृति क्या है लेती ना, हूँ ज्यादा इसमें अमाउंट होने से। हाँ, तो इसको हम लोग दो तरीके से ले सकते हैं कि एक तो ये कि अगर आपने इतना सारा, अगर आपने ग्रैटिट्यूड लिखा था, ठीक है, तो अगर आप नहीं लिखते तो हो सकता है वो मैम जो कम अमाउंट था वो मानती ही नहीं, बोलती कि इतना ही है, एक ये हो सकता है। सेकंड, जो बोल रहे हो ना आपकी कुछ भी अमाउंट देते हैं तो मन में ऐसा लगता है, उसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो ऑप्शन। उसको फीलिंग को चेंज करना ही पड़ेगा, इसीलिए बोलते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। आपको करना ही पड़ेगा, इफ़ यू वांट मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ तो करना पड़ेगा। और ऐसा कोई, देखिए, दिस इज जस्ट अ सेशन वेयर वी आर शेयरिंग, वेयर आई एम ट्राइंग टू share what I am doing, what I am practicing, and I have seen the changes happening in my life, so I am asking you, आपको क्या लगता है सबके मन में ऐसा नहीं आया? सबके मन में ही आता होगा। जिसने ये बुक नहीं फॉलो किया या ग्रैटिट्यूड नहीं फॉलो करता, सबके मन में आता है ना कि कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे लग गए। आप शॉप में जाते हो, कोई सामान टूट गया बच्चे से, आपको पैसे देने, क्या मन में दुख नहीं आता होगा? बिल्कुल आता होगा। हाँ, एक पुचका खा रहे हो, गिर गया, फिर आपने एक और लिया, वो पुचका तो वेस्ट हो गया, उसके लिए भी मन में आता है कि नहीं आता है? हर चीज़ के लिए आता है। लेकिन क्या है, अगर हमको पता चल गया है कि ऐसा करने से हमारे पास जो है वो कम हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एफर्ट करेंगे, है ना? धीरे धीरे एफर्ट करते 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 प्रैक्टिस आएगी, है ना? जब हम लोगों को पता है कि मिठाई ज़्यादा खाने से, पता नहीं है, ये सब बिलीव्स हैं हमारे, मिठाई ज़्यादा खाने से हम लोग हेल्दी बन जाएंगे, है ना? ये हमारे बिलीव बने हुए हैं। तो शुरू में तो हम लोग को कंट्रोल करना ही पड़ेगा ना, भूख लग रही होगी फिर भी कंट्रोल कर, इफ़ यू वांट। किसी ने कहा नहीं कि ऐसा ही करना है, ये सब हमारे मन की बात है। हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में मनी का साइकिल बढ़े, हम चाहते हैं कि हम खुश रहें और हमारी लाइफ में चीज़ें अच्छी अट्रैक्ट होएं, है ना? तो इम्पल्सिव जो रिएक्शंस होते हैं हमारे, कि किसी ने हमको डांटा, पलट के हम भी उसको एक जवाब दे दें, क्या मन नहीं करता है? सबका मन करता है ना? जो जनरली मैजिक प्रैक्टिस, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, सभी लोग यही बोलते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर लो। जितने पत्थर देते जाओगे उतने बड़े बड़े बोल्स्टर बन के आते जाएंगे, राइट? ऐसा ही होएगा ना? तो अब हमको पता है कि जब अगर हम ईंट का जवाब पत्थर देंगे तो पत्थर नहीं, एक बड़ा सा और बड़ा रॉक आएगा। तो हम क्या करेंगे? हम ईंट का जवाब पत्थर, क्या हम ईंट भी नहीं देंगे, हम चुप ही हो जाएंगे, है ना? सबके मन में आता है जो आप कह रहे हो, सबके मन में आता है। यू आर यंग, तो और जल्दी अभी सेट हो जाएगा। आपके लाइफ में अभी थोड़े ईयर्स का प्रैक्टिस है ये, हमारे लाइफ में तो और ज़्यादा ईयर्स का प्रैक्टिस है। हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं, हम लोग भी एफर्ट कर रहे हैं। एंड बोला जाता है ना, ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई एंड यू विल सक्सीड। वो ऐसे ही नहीं बोला जाता है। हाँ, मिल्खा सिंह भी भाग मिल्खा भाग देखिए, यस मैम। तो क्या वो एक ही दिन में वहां से वहां पहुंच गया था? नहीं ना, नहीं, बहुत क्यों प्रैक्टिस किया, बिल्कुल बहुत क्यों प्रैक्टिस किया था? किया। हम लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम चाहते हैं हमारी लाइफ अच्छी हो जाए, हमारी ड्रीम्स फुलफिल हो जाए, है ना? इसलिए कर रहे हैं सब प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। सुबह उठ के सोचो आज हम बहुत खुश हैं, स्टे हैप्पी। मिरर में जाके बोलो आई फील अबंडेंट, आई हैव अबंडेंस, आई एम अ मनी मैग्नेट। ये सारी चीज़ें बोलो। आई एम वेरी गिविंग, आई लव गिविंग टू पीपल। ये सब चीज़ें बोलो तो और अच्छा लगेगा, ठीक है? हमको कब देने में अच्छा लगेगा? जब हमारे पास बहुत सारे पैसे आएंगे, तब 4 डिजिट्स या 5 डिजिट्स चीज़ें तुम दोगे दूसरों को, लेकिन आएंगे उतने तब तो देंगे ना, है ना? तो वो फीलिंग्स हमको लानी है और तभी हम आगे दे पाएंगे। यस, तो यही करना है, ओके? एंड आई फील, अगर आप यहाँ रोज़ आ रहे हो, ठीक है, हम लोगों ने जो भी यहाँ शेयर किया है, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, गो एंड गिव टू द सोसाइटी। आपको लगता है कि 10 रुपीज़ आपने यहाँ से सीखे हैं, तो गिव दैट 10 रुपी टू समवन टुमारो, ओके? कीप गिविंग एंड यू विल कीप अट्रैक्टिंग, okay? So you will keep attracting more and more, more and more, the more and more you give. आपको लगता है कि नहीं, आपको पैसे नहीं देने हैं, गिव ब्लेसिंग्स, मन से उसकी सेवा करो, मन से। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, पेरेंट्स को हमको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करना है, बहुत सारी अच्छी बातें बोलनी है, ओके? पेरेंट्स हुए, नेचर हुआ, आप सब ने वो
यूनिवर्स के नीचे जाके शाहरुख खान का पोज किया जैसे श्रुति ने आज शेयर किया था, अतर वाज लाइक वाओ सो क्यूट, किया आपने, रोज करना है वो। ओके, सो डू दीज थिंग्स डेली। बालकनी में जाके विंडो से देख के फील, जितना स्काई के नीचे डायरेक्ट करेंगे वो बेस्ट है। इफ यू कैन डू इट, जस्ट देख के जस्ट यस थैंक यू सन गॉड, सल्यूट टू यू, जैसी फीलिंग आए वैसी करिए। ओके, कीप गिविंग बैक, कीप अप्रिशिएटिंग नेचर, कीप एक्नॉलेजिंग एवरीवन। So thank you, Jagriti. Vivek, you had raised your hand, or Aditi ji? Yeah, Ma'am, you were saying about 369. Can you please tell what I will is tell it it tomorrow. exactly? I will tell it tomorrow because it's already quite some time now. We'll share it tomorrow. Ma'am, one thing I was saying, like Yeah. at times I do realize that I should speak positive and do lot of gratitude for my teacher. One But second. ma'am, एट टाइम्स नहीं होना चाहिए, ये हर टाइम होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी कि जैसे नहीं हाथ में एक धागा बांध लो कि क्या है, ग्रैटिट्यूड करना है, पॉजिटिव बोलना है, ऐसी एक तो चीज़ आनी चाहिए हर। सीक्रेट बुक में है ना, सीक्रेट मूवी देखिए, उसमें लिखा है पूरे टाइम अपने आप को पूछते रहना, हाउ एम आई फीलिंग, हाउ एम आई फीलिंग, हाउ इज द जोश, ऐसा एक तो लिख लो, कहीं पे भी लिख लो हाउ इज द जोश, सोचो यस हाय पॉजिटिव ग्रेटफुल, ऐसी फीलिंग आनी है। ओके, तो वो करना है हम लोग को। यस विवेक। ma'am, I want to do one sharing. No, Like, Jagriti, अच्छा okay, let's, sharing is important, yeah. it is not a recent one, although like I have experienced, you have said one line, I am a money magnet. So I realized that a few days back in my old phone, I had that wallpaper, ma'am. So every day I used to see that, and I used to attract money. I used to get a lot of chance to like get loads of orders used to come, Okay, and do it that. was You magical. Yes. So I think that I should reset that wallpaper in my Yes, phone. yes, do that. I Yeah. want to earn a lot of money. Yes, you don't want to earn, you are earning a lot of money, ठीक है, ऐसे I'm बोलिए। earning a lot of money and I want to increase it even more Okay, gradually. ठीक है। Okay, you will, but you have to keep a check on how you are speaking. Okay, so thank you, Jagriti. Yes, Vivek, you were saying something. Thank you so much, Jagriti, for your questions and your sharing. Yeah, I just wanted to Thank add you. up to the discussion which was happening is Yeah. day before yesterday while sleeping at night there was some breakdown, and I just was feeling kind of what we say is anxiety. Some things which I wanted them to happen, but they are taking time because of some things, some circumstances. So they are taking time, but Hmm. all of those things came at a certain moment, and I started feeling very very less accomplished, low kind of Hmm. thing. Hmm. So when all these things happen and some low thoughts come to your mind, suddenly all the negative things which are surrounding around your head start attracting at that particular moment, and they come at one point. Yeah. So I wanted to say is that Jagruti is saying all those things, that what I wanted to say is, even we get a lot of negative things, but what I tried to focus on that particular moment is I just closed my eyes. I was feeling kind of anxiety kind of thing. I just closed my eyes and I started thinking of all the good things that happened in the day. And one by one, I started taking around 10, 12 things which happened good around the week, around the day. And I was feeling very stressful. But as the moment I started counting the good things happening with me, uh, the stress started releasing. Trust me, if anyone is feeling that kind of stress or feeling that I am thinking negative or only negative things are coming to your mind, just start thinking all the good things which are happening with you. Eventually, all the negative things will vanish away. Yes, very good, Vivek. It's almost like kind of magic rock कि आप वो Yes. चीज़ें याद करो which are good, which are nice. If Yes. not of your day, then of your life, you can, at least you have a job, at least you have your family, at least you have a Yes. roof over your head. So many things. That is why it is such a powerful thing. Just doing Yes. gratitude. Okay, so thank True. you Vivek, and anyone who feels this, और आपको मूड शिफ्टर होना चाहिए आपके पास। ओके, ग्रैटिट्यूड इज दी बेस्ट, बट उसके अलावा भी आपके पास होना चाहिए। कितने बार नहीं मन करता दिमाग दौड़ाओ, ग्रैटिट्यूड की चीज़ें लाओ, तब आपको तुरंत अपना मूड शिफ्टर यूज़ कर लेना चाहिए। अदरवाइज ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट। ओके, सो थैंक यू विवेक।
Yes, Hina, you wanted to share about something or the 555? हाँ मैम, हाँ. जो आपने बोला, यू हैव आस्क्ड अबाउट 555 मैम, मैं सेंड कर दूंगी वो लिंक। और इन शॉर्ट मैं बोल दूं तो मतलब ऐसा है कि आप जो भी चाहते हैं वो एकदम शॉर्ट सेंटेंस में कंटिन्यूस 5 डेज तक 55 टाइम्स हमको लिखना है। और हम जो चाहते हैं वो 5 डेज के अंदर अंदर ही मिल जाता है। मुझे ये मिल गया, मतलब दूसरे दिन ही मिल गया मेरे को। वाओ, वेरी तो नाइस. वेरी शॉर्ट, बहुत बहुत लंबा नहीं करना है, पर जो भी चाहिए एक ही लाइन में वो लाइन में आ लिख जाना दे. चाहिए, इतना शॉर्ट सेंटेंस होना चाहिए। और 55 टाइम्स कंटिन्यूस 5 डेज तक एक सेम टाइम पे, मतलब रात को 11 बजे तो 11 बजे ही लिखना है। ओके ओके, ठीक है ठीक है. थैंक यू हिना जी, थैंक यू सो मच. रूपाली जी, इफ यू आर हियर यू कैन, एंड आप प्लीज लिंक भी शेयर कर देना, तो एनीवन एल्स हु वांट्स टू डू इट कैन डू इट. थैंक यू सो मच हिना जी फॉर दिस. थैंक यू सो मच. या यस आदिति जी, यू हैव अ क्वेश्चन और अ शेयरिंग? every day. Aditi ji, we can't hear you properly. Every day. Aditi ji, the network is not clear. So if we take this, if you remember this, we'll take it tomorrow. Okay? No, we can't. Can everyone hear her? No, Aditi ji, sorry, we can't hear you. ओके, सो थैंक यू एवरीवन. विल कनेक्ट टुमारो एंड आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट कि आप खुद एक अपना लिस्ट बनाना है आपको, या तो आप ग्रुप में शेयर करिए कि कैसे आप खुद अपना एक स्ट्रक्चर बनाने वाले हो कि हाँ मैं ऐसे ऐसे रोज प्रैक्टिस करूँगी. ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं आप पूरी बुक में करना चाहते हो वैसे कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि नहीं आज आपने बुक उठाई, जो पेज खुलेगा आप वही प्रैक्टिस करोगे, आप वैसे कर सकते हो. इवन दैट यू कैन डू, बट एवरी डे यू हैव टू टेक अप वन प्रैक्टिस. या आपको लगता है कि मैजिक इंग्रेडिएंट, मैजिक रॉक, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड फुट स्टेप्स आप रोज अपने लाइफ में आपने इनकॉर्पोरेट कर लिए एंड ये तो आप करोगे ही करोगे, तो आप वैसा बताओ. ठीक है, तो आपको खुद सोचना है कि हाँ ये प्रैक्टिसेस तो ईजी है, मेरे को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना है, और ये तो हम करेंगे ही. ओके, एंड एनी वन एंड एवरी वन, आपका जो प्रोफेशन है, जो आप कर रहे हो, दिन में भी कर रहे हो, उसमें इन्वॉल्व जितनी चीज़ों को आप थैंक यू करोगे उतना अच्छा रहेगा. जैसे जागृति आपका सप्लायर होगा कोई इंग्रेडिएंट्स का, उसको थैंक यू. जो आप बना रहे हो उसको थैंक यू. जिसके पास जा रहा है उसको थैंक यू. आप अपने जो भी आप काम कर रहे हो, लाइक विवेक, यू कैन डू द सेम फॉर योर बॉस, फॉर योर क्लाइंट्स, फॉर द स्टाफ इन योर ऑफिस, वैसे कर सकते हो. और भी आप लोग भी जो जो अपने काम करते हो उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें घर की मेड आ रही है, उसने जो काम किया, आपका नाइफ है, पीलर है, अवन, फ्रिज, जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो उसको आप जितना ज़्यादा थैंक यू करते जाओगे उतना और अच्छा रहेगा. ठीक है, आपका ड्राइवर है, जो भी लाइक इलेक्ट्रिशियन आया घर में, प्लम्बर आया, उन सबको पहले थैंक यू. माने आपके मन में लाइक होना ही चाहिए कि ये काम किया, इसके लिए भी थैंक यू, उसको भी थैंक यू, पैकेट कहाँ से आया. इट शुड बी लाइक दैट कि आपको लगे कि ओह बात क्यों करें किसी से, इतना सारा ग्रैटिट्यूड की चीज़ें हैं. ठीक है, इट शुड बी लाइक दैट. Okay, so thank you everyone and remember your magic rock and see you all tomorrow. Thank you. Thank Good you. night. Thank you. Good Thank night. you. Yeah, good night. Thank you, ma'am.